So I need not to restrict myself on one or two particular aspect. Rather, since we are very less in numbers, I would like that all of the people who are attending may share whatever they are facing the problem, so that I can try to share my views that how that problem can be resolved. I'm having a couple of things in my mind. Let me tell you what I am thinking, that what couple of things which we should discuss on today's are. In input tax credit, the common notices which are being received by all the businessmen, which are supposed to be responded by the professionals, are mismatch notices. This is the one biggest area. Different type of mismatching is there. Then the second struggle which I think is people are struggling with is blockage of electronic credit ledger under Rule 86A. That is a second set of issue which is being faced by the people. Third set of issue in the input tax credit is, I would say, errors of accounting or data feeding. At times, people have filled CGST, SGST instead of IGST, or vice versa, taken wrong credit, or maybe posted their sorry data. to interrupt. Yes. हाँ, थोड़ी आपकी सर आवाज धीरे आ रही, थोड़ा लाउड अगर कुछ वॉल्यूम कर सकते हैं सर. यस. Okay. Is it fine now? हाँ, yes sir, comfortable. You want me to use headphones so that I think just some. I think with headphones it will be better. Just some. Yes sir. Am I audible to you? Yes sir. Yes. Is it better now? Yeah, more better. Okay, fine. Right, so I was discussing a couple of the issues which I am having back of my mind, that the people are facing issues or the maybe controversial aspects in the input tax credit with some kind of the blockage of the electronic credit ledger, number one. Number two is mismatch notices. Number three is issues of some wrong accounting or maybe some wrong data feeding. Please mind, I'm not talking about the legal aspect, whereby a person has wrongly charged the tax as a CGST, SGST vis-a-vis IGST. So for that purpose, the specific legal provisions are there, they are being taken care. And for that purposes, today itself, the circular has also been issued after when in the matter was discussed in the last GST Council meeting. So that's not an issue as of now, I would say. Now, the another aspect is, so many times we have seen the people has not reversed their credit, even when the payment has not been made for the inward supplies within 180 days. Because at times what happen, on account payments are being done. And edging is a difficult job. So maybe people has not done so. Next aspect, which I think are controversial issues which are in relation to input tax credit, is invoices or notices is being received by so many persons, alleging them to be a fake invoice. It may or may not be really a fake invoice. Maybe a person has purchased some goods or services on a bona fide basis, and his supplier has not paid the taxes correctly. In fact, you won't believe, yesterday I received a notice for one of the client, show cause notice, in which the allegation was the person from whom you bought. Let us say my client is Mr. A. A bought goods from B. B got goods from C. So
there is a mismatch in GSTR 2A versus 3B of B. That means they are alleging a transaction between C and B and they are giving notices to A. That means supplier of supplier may not have paid the taxes correctly. Not me, that's a third person. Last aspect, which I think are the burning one of the case law which each and everyone must be well aware. बहुत hype मचा जिसका WhatsApp वगैरह के ऊपर, सफारी रिट्रीट. क्या करना चाहिए किसी भी prudent professional को या prudent businessman को when some mall is being constructed, when any warehouse is being constructed, when any hotel is being constructed? So उसके लिए क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए? ये कुछ एक चीजें मेरे दिमाग में थी जो मैंने आपसे शेयर किया. आई वुड लाइक कि अगर ये आपके काम की हैं तो इनके ऊपर बात करेंगे. अगर आपको लगता है या किसी भी पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि इसके अलावा कोई और चीज ऐड करनी चाहिए, वो अपने मतलब की ज्यादा है, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं. जस्ट आई एम taking a pause from my sides to have your views, what we should discuss today. Any of the participants? Safari Limited is one of the judgment, Jatin, where in even Gandhinagar and nearby Gandhinagar, like Bolera, there are many of the textile parks coming on, and the investor is creating facilitations and then giving the leasing to the many of the occupants. So we can discuss Safari Retreat, which given by Honorable Odisha High Court. This is one of the case which I think everyone want to learn and let how we should go ahead with this, in my opinion. Chawla sir? Sir, basically, this is the topic of ITC only. But if at the last the time permit, then sir, few points which one should take care while applying for registration. Because a rejection of registration is a big issue nowadays. So if at all sir time permits, give few light on this also. चावड़ा जी, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना बड़ा इशू है कि हम इसको 2 दिन तक इसी को डिस्कस कर सकते हैं. ताकि अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी होगा, I will try to answer from my side. So I would just wonder if you guys just let me know कि मैं क्या जैसे कि अभी लड्डा जी ने अभी बताया, एक पॉइंट सफारी रिट्रीट we need to discuss. Any other aspect, because at least 3-4 aspect we can discuss on today's time. जो भी issues members को one aspect which inverted duty refund recently, जो Supreme Court, Honorable Supreme Court told that still it is a privilege of government whether to decide refund or not. If you can touch this point also, it's very beneficial for textiles and all other inverted duty structure businesses. One another sir, wo Tran 1 that also judgment came just couple of. Tran 1 is okay sir. One issue which I think will face lot of issue, the refund which arises under section 143(2), the CVD or SAD in consequence to finalization of bill of entry under section 18 and the file provisionally. Now department is telling there is no provision under erstwhile law, even the GST, so it's rejected, and many of the high courts, even Gujarat High Court said allow Thermax case in the matter of rebate claim. But still down the line, it is recently one case law is rejected by Commissioner that there is a guideline from council that it is not available. So if you can touch that point, please. So you don't want to discuss the mismatch notices? Definitely, sir. So sir, now we have given 3-4 points which okay, fine. So, area of trust. Okay, I'll go ahead with this my pace, and then whatever time remains, I will try to cover all the aspects whichever you have stated. Okay, so let us start with some of the fundamental aspect of taxation. Allow me 5 to 10 minutes time to discuss some of the basic theme of the taxation which a professional should be well aware with. उसके बाद हम बात करेंगे specific aspects, specific issues. Today I am not going to discuss statutory provisions. We will discuss issues. So I think वो ज़्यादा important होगा सभी के लिए. But before coming to the issues, we need to understand couple of things. First, what is basis of taxation? Let me reiterate words of Lord Keynes, which has been
reproduced, rephrased by our Honorable Supreme Court in number of cases. What has been said by the Lord Keynes, that if a person sought to be taxed comes within the letter of the law, he must be taxed, however great the hardship may appear to the judicial mind. However the hardship, please mind, I have used the word hardship, not arbitrariness. Meaning thereby, अगर कोई व्यक्ति किसी टैक्स नेट में आता है, किसी तरीके से लिखा हुआ है लॉ में, साफ तरीके से, अनएम्बिग्युअस तरीके से लिखा हुआ है कि इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, देन अगर कोर्ट्स को ये लगता है कि ये हार्डशिप हो रही है, इवन देन कोर्ट उसके बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। 2 મિનિટમાં મળી જશે જો। सो टैक्स लगेगा। आई थिंक बीच में कोई नॉइस आ रहा है। आई होप यू आर ओके विद इफ आई एम यूजिंग हिंदी। भाई म्यूट करो नहीं, अगर मैं हिंदी बीच में यूज कर रहा हूं, आई होप इट्स वेल ओके विद यू। ओके फाइन। Second aspect, this is the only the first limb which I told you. Now second is very, very important for all the professional. Then Lord Keynes used to said, if the crown seeking to recover the tax cannot bring the subject within the letter of the law, if the crown seeking to recover the tax cannot bring the subject within the letter of the law, the subject is free. However, apparently within the spirit of law, the case might otherwise appear to be. Meaning thereby, राजा या सरकार हमारे कंटेक्स्ट में जो कि किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है, जो कि किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है, अगर वो अपने कानून में अनएम्बिग्युअस तरीके से उसको नहीं लिख पाती, अनएम्बिग्युअस तरीके से उसको नहीं लिख पाती है, इन दैट केस दैट सब्जेक्ट इज फ्री, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सकता। दैट्स द वन ऑफ द बेसिस ऑफ टैक्सेशन ऑफ फंडामेंटल बेसिक ऑफ द टैक्सेशन। इन्हीं वर्ड्स को आई एम श्योर दैट साइमन यू मस्ट हैव हर्ड, ईच एंड एवरीवन ऑफ यू हैव हर्ड, उन्होंने रीफ्रेज किया। इसको भी आपने बहुत सारे पैराज में जब भी जजमेंट देखे होंगे डिफरेंट हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आपने पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा कि इन अ टैक्सिंग स्टैट्यूट one has to look merely at what is clearly said. In any taxing statute, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is no room, there is no equity about a tax. There is no presumption as to tax. This is very important. There is no presumption as to tax. टैक्स लगेगा ही, ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है कहीं भी। नथिंग इज टू बी रीड इन, देखिए कितना प्यारा वर्ड लिखा है, नथिंग इज टू बी रीड इन, नथिंग इज टू बी इंप्लाइड, वन कैन ओनली लुक फेयरली एट द लैंग्वेज यूज्ड। अगर आप इस लाइन को जब पढ़ते हैं तो कई बार हम लोगों के दिमाग में आएगा, एक तरफ तो वर्ल्ड के रिनाउंड ज्यूरिस्ट ये कह रहे हैं कि नथिंग इज टू बी रीड इन, कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ इंप्लाइड नहीं है, जो लिखा है वही सत्य है, उसी को मानना है, बस बात खत्म। इस बात, ये जो कह रहे हैं नथिंग इज टू बी रीड इन, इसको भी रीड करने का एक अपना तरीका है। और यहां से हमारा स्टार्ट होता है जर्नी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट की जो पावर आती है, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 says no tax shall be levied or collected otherwise than by way of authority of law. Please mind, the word used is levy or collected, and it is written in a negative manner. That means neither tax can be levied nor it can be collected until unless law provides you the power. So ये जब भी मैं कोई चीज देखता हूं या सोचता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं
क्या जो एक्शन असेसिंग ऑफिसर कर रहा है, क्या जो नोटिस दिया जा रहा है, इसकी पावर उनको है। एंड बिलीव मी, मोर देन 90%, मैं जीएसटी में बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं ये चीज, मोर देन 90% केसेस या तो विदाउट जुरिसडिक्शन होते हैं या विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर फाइल किए हुए, फॉलो किए हुए होते हैं, which cannot be allowed, which is not allowed actually. With this small background, let me come on input tax credit aspect. Input tax credit क्या है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। VAT में it used to be like the term as input tax credit. Central laws we used to call it as a SENVAT credit. उससे पहले MODVAT। तो वो सब हम सब बेसिक थीम हमें सब पता है कि हम जो पिछली पुरानी सप्लाईज के ऊपर दे के आ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हमें सेट ऑफ लेना है, रिडेम्पशन लेना है, कुछ एडजस्टमेंट लेना है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वर्ड यूज हो रहे हैं। अभी देखिए हर बार हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ क्रेडिट का हमें ये बताया गया कि आपको बेटर क्रेडिट मिलेगा। जब भी नई कोई रिजिम आती है उसमें ये बोला गया इसमें क्रेडिट अच्छा होगा। बट मैं आपको एक जजमेंट शेयर करता हूं जिसमें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं, इवन मॉडवेट के टाइम में, इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मॉडवेट के टाइम में बताया व्हाट इज क्रेडिट। मतलब ये कई बार आपने बहस सुनी होगी, इट इज अ बेनिफिट और अ राइट, ये आपका राइट बनता है नहीं बनता, टैक्स आपका ग्रॉस वैल्यू पे ही लगना है या नेट वैल्यू पे लगना है, समथिंग लाइक दिस। तो मॉडवेट के जमाने में इचक लारानंद जी मशीन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि मॉडवेट इज नथिंग बट बेसिकली अ ड्यूटी कलेक्टिंग प्रोसीजर। इट इज नथिंग बट अ ड्यूटी कलेक्टिंग प्रोसीजर। अब इसका मतलब समझिए, बहुत गूढ़ मतलब है इसका। मैंने 100 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए टैक्स दिया था, लेट अस अज्यूम। मैंने 150 रुपए में बेचा और 15 रुपए का मुझे जीएसटी देना है सरकार को, या एक्साइज उस टाइम देना होता था, और 10 रुपए का मुझे क्रेडिट अवेलेबल, 5 रुपए का मुझे वैल्यू एडिशन। ना कंपेयर इट विद द वन टाइम टैक्सेशन रेजिम जो कि वैट से पहले स्टेट लॉज में हुआ करती थी या मॉडवेट से पहले एक्साइज लॉ में थी। उसमें क्या होता था, देयर वाज ओनली वन पॉइंट टैक्सेशन, यानी 100 रुपए में माल बिक गया, एक्साइज ड्यूटी लग गई या सेल्स टैक्स लग गया, तो देयर इज नो टैक्सेशन आफ्टर दैट, इट्स अ टैक्स पेड गुड्स। द मोमेंट ये मॉडवेट या वैट स्कीम पिक्चर में आई किसी टैक्सेशन के, तो जो ये क्रेडिट दिया जा रहा है, दिस इज नॉट ओनली एन benefit which is given by the government, rather it is an obligation which is to be given, which is to be exercised by the government. Why so? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट मल्टीपल पॉइंट टैक्स, मल्टीपल टैक्स थोड़ी लगाएगी। 10 बार अगर कोई चीज माल बिक गया तो 10 बार टैक्स लगा दो उसके ऊपर। द ओनली आइडिया इज टू टैक्स द प्रोडक्ट एट इट सेलिंग प्राइस, नॉट एट द इंटरमीडिएरी प्राइस। यानी 100 रुपए नहीं, 150 रुपए पे हमको टैक्स चाहिए। दिस इज व्हाट द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। तो अब अगर 100 पर भी टैक्स लग गया है, आप 150 पर भी टैक्स लगा रहे हो, तो जब तक आपने 100 रुपए के टैक्स के ऊपर क्रेडिट नहीं दिया, वो वैल्यू एडेड टैक्स मैकेनिज्म ही नहीं बना, आपने डबल टैक्स ले लिया। सो दैट इज व्हाई इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू अलाउ द क्रेडिट। ये आज नहीं, मॉडवेट जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का जजमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मॉडवेट के टाइम को एग्जामिन किया जा रहा था, उसमें बताया। अब थोड़ा सा एक एक कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूं। आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री विद मी कि बाय दैट टाइम जैसे जैसे हम आगे गए, मॉडवेट से हमें बताया गया सेंडवेट में क्रेडिट फ्लो बेटर हो जाएगा, और एक्चुअली हुआ भी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेट ऑफ रिजीम से वैट में कुछ बेटर हो गया। जब जीएसटी आ रहा था तो वन ऑफ द मेन पॉइंट वाज कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो बेटर होगा। और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या किसी ब्यूरोक्रेट में या कहीं खाली पार्लियामेंट में बोल दिया गया हो, ऐसा नहीं है। हमारा लॉ, हमारा देश जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है हमारी। जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, हम सब जानते हैं। 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में 2014 में, सो दैट जीएसटी लगाया जा सके। और जब भी कोई बिल पेश होता है उसके साथ में उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन
साथ में लिखे जाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव वाज टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव कैसे होगा? बाय गिविंग बेटर क्रेडिट, बाय गिविंग बेटर क्रेडिट। और जब आप जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट अपने अपने रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में आए तो उनके भी जब आप बिल का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वहां भी लिखा हुआ था फ्री फ्लो ऑफ द क्रेडिट, वो भी लिखा था। लेकिन मैं अभी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के पर हूं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 जब आप ऑब्जेक्ट जाके देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है इंटेंडेड ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्ट इज टू रिमूव द कैस्केडिंग इंपैक्ट। सो ये मैं आपको क्यों इतनी मतलब बड़ा शार्प तरीके से और रिमाइंड करा करा के बार बार अंडरलाइन खींच खींच के आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, क्या प्रोविजन है, एक स्टेप ज्यादा है। क्योंकि कोई भी कानून, जब जैसे हम सब जानते हैं कि रूल्स जो होते हैं वो एक्ट के अंडर में बनते हैं, रूल्स जो हैं वो एक्ट के अंडर में बनते हैं, एक्ट के ऑथराइजेशन के अंदर। एक्ट अंडर ऑथराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैस्केडिंग, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। कैस्केडिंग इफेक्ट कम से कम कब होगा? जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मीनिंग देयर बाय, अब मैं इसको लिंक करने की कोशिश करता हूं जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लॉर्ड केन का एक बार इनिशियल मेरे रिमार्क में बोला था। वहां पर क्या बताया गया था कि नथिंग इज टू बी रीड, नथिंग इज टू बी इंप्लाइड, करेक्ट। जब तक लॉ क्रिस्टल क्लियर है, जब तक लॉ क्रिस्टल क्लियर है, लॉ बिल्कुल कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं दे रहा, तब तक बिल्कुल वही करना है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमको ये लिखा हुआ आता है कि क्रेडिट इसका नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम। एक्ट में अगर लिखा हुआ है तो आई विल नॉट आर्ग्यू दैट एज ऑफ नाउ। बट जब भी इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश आती है, आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर केस आपके सामने है और उसमें कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश हो रही है कि ये क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों टाइप के मीनिंग निकल सकते हैं, तो वेटेज जाएगा जहां पर क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जीएसटी लाने का ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव मीट आउट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास भी एक्ट हो वो इमीडिएटली निकाल के देख भी सकते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्रेडिट ब्लॉकेज, वहां पर एक लिस्ट दी गई आराम से, ए बी सी, इस तरीके के क्लॉजेस, सी डी ई एफ वहां पर दिए गए बहुत सारे। क्लॉज बी को रेफर करें एक बार। क्लॉज बी में बहुत सारे आइटम्स एनलिस्ट किए गए, फूड एंड बेवरेजेस, ये वो, हेल्थ सर्विसेज, फलाना ढीकना, इनका क्रेडिट नहीं, इंश्योरेंस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर उसमें एक प्रोविजो आता है, ठीक है, कि इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो सेम सर्विसेज आप आगे सप्लाई कर। देन देयर इज अ, दिस इज क्लॉज 1, 17(5)(b) clause 1, and one is having a proviso, then there is a clause 2, then there is a clause 3, and then there is another proviso, then there is another proviso. Now the question comes कि ये जो सेकंड वाला मैंने प्रोविजो आपको बोला, पहले तो एक प्रोविजो 17(5)(b)(1) में लगा हुआ है, उसके बाद में 3 के बाद में, रोमन 3 के बाद में एक प्रोविजो लिखा हुआ है। तो वेदर दिस प्रोविजो इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन रोमन 3 और होल ऑफ द क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। वहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर इन सारी चीजों के लिए। तो वेदर दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन रोमन 3 और क्लॉज 1 और क्लॉज 2, अपार्ट फ्रॉम अदर आइडियाज कि हम कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, वन ऑफ द वे टू रीड दिस लॉ इज क्रेडिट बेटर कैसे मिलेगा। एटलीस्ट आई रीड दिस लॉ इन दैट मैनर। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटर कैसे मिलेगा? सो दिस इज वन ऑफ द गुड आर्ग्यूमेंट टू से कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब इस प्रोविजो को हम पूरे क्लॉज बी के लिए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा थीम आपके साथ में शेयर किया। प्रोविजन सबको पता है, सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी बताता है, उसके बाद 16(2) में कुछ एक कंडीशन दिए गए, 16(4) इज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन, 17 में कुछ अप्रोप्रिएशन ऑफ द क्रेडिट और ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट की बात की। ये मैं स्पेसिफिक प्रोविजन आपसे अभी तक डिस्कस नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिकली जहां भी जरूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर केस में उसमें हम बात करेंगे।
So now let me start with some of the points which I have raised before you all and some of the points which you have asked me to talk about. सबसे पहले जहां मुझे लड्डा जी ने स्टार्ट छोड़ा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं. सफारी रिट्रीट. सी सफारी रिट्रीट उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट. जवेरी साहब का लिखा हुआ जजमेंट, यहां से ही राजस्थान से ही गए थे. बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन जजमेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया, आई मस्ट से. बट मैं कुछ उस ऊपर आऊं उससे पहले एक चीज जो कि आप सब लोग अग्री करेंगे मुझसे, उसको बात कर लेते हैं. जब भी आप सफारी रिट्रीट अगर यूज करते हैं और अपनी अथॉरिटी को बोलते हैं कि भाई सफारी रिट्रीट ने ऐसा ऐसा कहा है इसलिए हमारे ऊपर है, तो आपकी अथॉरिटी क्या कहने वाली है? अरे वो तो सब उड़ीसा का है, गुजरात में नहीं लगेगा. करेक्ट है ना? यही कहने वाले हैं. अरे वो तो उड़ीसा का है, वो गुजरात का थोड़ी है, तो वो हाईकोर्ट हमारे यहाँ लगता ही नहीं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई रेवेन्यू फेवरेबल एडवांस रूलिंग भी होगी त्रिपुरा की, वो अपने को अप्लाई कराते. अब एडवांस रूलिंग की क्या वक्त है और हाईकोर्ट जजमेंट की क्या वक्त है? एडवांस रूलिंग की वक्त क्या है वो तो कानून में लिखा हुआ है. 103 जब पढ़ेंगे तो 103 में साफ लिखा हुआ है, जो ये रूलिंग है, एडवांस रूलिंग एज प्रोनाउंस्ड बाय द AAR और एज प्रोनाउंस्ड बाय द AAR appellate authority is only and only binding on applicant. Only and only binding on applicant. यानी कि अगर एक कंपनी ने, let me share my view, हो सकता है किसी और का व्यू डिफरेंट हो. यानी कि अगर गुजरात की एक कंपनी ने ओपिनियन वो AAR लिया, एडवांस रूलिंग लिया, तो प्रोबेबली उसी कंपनी के महाराष्ट्र ब्रांच के ऊपर वो अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. यानी डिस्टिंक्ट पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैंडेटरी बाइंडिंग नहीं है. ये कानून में लिखा हुआ है. एक और अथॉरिटी जो कि प्रैक्टिकली अभी वर्किंग में नहीं है, आपने सुना होगा, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. ये अभी शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा. ये कानून में प्रावधान है. कानून में 2019 में ये प्रावधान लाया गया. एडवांस रूलिंग की अपीलेट एडवांस रूलिंग को, और उसकी भी अपील एक नेशनल अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी. कानून के हिसाब से सिर्फ जो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, उसकी दी हुई रूलिंग बाइंडिंग होती है, नॉट ओनली ऑन एप्लीकेंट रेदर ऑन डिस्टिंक्टिव पर्सन एज वेल. वो किसकी है? सिर्फ और सिर्फ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. यानी गुजरात वाले ने लिया तो वो बाइंडिंग महाराष्ट्र में भी होगी, अदरवाइज तो वो सिर्फ गुजरात में ही बाइंडिंग. ये तो वक्त है एडवांस रूलिंग की. अब हम बात करते हैं हाईकोर्ट जजमेंट की, विच आई एम श्योर कि आप लोग मेरे से ये सब चीजें पता होगा, बट लेट अस ट्राई कि उसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में बात कर लें, कॉन्क्रीट तरीके से बात कर लें, और जिनको अगर चाहिए तो वो नोट डाउन कर सकते हैं. एक जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत प्यारा जजमेंट है, जिसमें क्या लिखा गया. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओनली. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि any order passed on a writ petition questioning the constitutionality of a parliament act, on question of a constitutional validity of a parliamentary act, whether interim or final. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आपने सुना होगा कि अरे साहब वो तो अभी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया. ये होता है ना कि भाई क्या कहते हैं, फलाने का हाईकोर्ट, अरे मद्रास वो राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ दे दिया, बट अभी तो वो इंटरिम ऑर्डर, तो उसकी क्या वक्त है? प्लीज माइंड माय वर्ड. सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात बता रहा हूं. उन्होंने क्या कहा कि वेदर इट इज एन इंटरिम और अ फाइनल, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 226. 226 इज द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ एनी हाईकोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. विल हैव इफेक्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया subject to the applicability of that enactment.
सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट एनेक्टमेंट का मतलब है जैसे कोई कानून बना हुआ है फॉर एग्जांपल, और वो पार्लियामेंट का कानून है। अब हमारे यहाँ कई प्रोविजन है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पहले कानून ऐसे होते थे जो कि एप्लीकेबल नहीं होते थे, अब तो ज्यादातर सेम एप्लीकेबल है, बट स्टिल ईस्टर्न जो स्टेट है हमारी, वो कई जगह पर कानून एप्लीकेबल नहीं होते हैं जो कि अपने रूटीन कानून। तो उनको छोड़ दीजिए एक बार को, जहां पर वो कानून एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कानून है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर किसी एक हाईकोर्ट ने कुछ कह दिया है, अब वो चाहे इंटरिम तौर पे कहा है चाहे फाइनल तौर पे कहा है, दोनों बातें, इंटरिम और फाइनल बोथ, उस केस में वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, उड़ीसा हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, ये तो फाइनल जजमेंट है सफारी रिट्रीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अज्यूमिंग कि इसका कोई कॉन्ट्ररी जजमेंट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस ये पूरे पैन इंडिया एप्लीकेबल होगा। जैसी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी उड़ीसा में है, वैसी की वैसी एप्लीकेबिलिटी बाकी जगह पर है। ये सिचुएशन सेल्स टैक्स रिजिम में सेम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स में क्या होगा या वैट में क्या होगा, गुजरात का वैट एक्ट अलग है, उड़ीसा का वैट एक्ट अलग है। तो अगर उड़ीसा के वैट एक्ट के किसी प्रोविजन के ऊपर उड़ीसा हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो बेशक उड़ीसा और गुजरात के वैट एक्ट का प्रोविजंस वर्बटम सेम हो, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है। उसकी परसुएसिव वैल्यू हो सकती है लेकिन बाइंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जीएसटी में उड़ीसा जीएसटी और गुजरात जीएसटी एक्ट तो अलग अलग है, दो रिटर्न एग्जैक्टली सेम, लेकिन सीजीएसटी एक्ट तो सेम है। तो जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया या रेड डाउन किया पर्टिकुलर प्रोविजन को, वो प्रोविजन अभी हम बात करते हैं, वो सिर्फ उड़ीसा जीएसटी एक्ट को नहीं किया, उन्होंने उड़ीसा जीएसटी एक्ट अलोंग विद सीजीएसटी एक्ट को भी किया, और वही सीजीएसटी एक्ट गुजरात में भी लगता है, तो वो बाइंडिंग नेचर ले गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कुसुम इंगट एंड अलॉय लिमिटेड यहां पर, लेकिन स्पेसिफिक बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात थी यहां पर, और हालांकि सफारी रिट्रीट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। लेकिन अगर अदर प्रोविजंस की भी कोई बात हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जगह अदरवाइज भी कोई जो जजमेंट्स अपने कई तरीके के निकल के आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन है, तो उस केस में भी वन में रेफर वेरी excellent judgment, excellently written judgment of Honorable Bombay High Court in the case of Godavari Devi Saraf. One may refer that. वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से, अभी टाइम वो इनकम टैक्स का इशू था तो टाइम ज्यादा है तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। तो बट मोटे तौर पे आई होप आई हैव कन्वेड माय थिंग कि जब भी आप किसी दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि आपके खुद के हाई कोर्ट का या कोई दूसरा कॉन्ट्ररी जजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उसका बाइंडिंग नेचर है। सर अब बात करते हैं हाँ जी सर, नेम, वो जजमेंट नेम रिपीट करेंगे प्लीज? कौन सा वाला, बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाला? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कुसुम इंगट एंड अलॉय प्राइवेट लिमिटेड 2004 का जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 168 ELT होना चाहिए, ठीक है? दैट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और गोदावरी देवी सराफ इज फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी नाइस जजमेंट। अभी देखिए था क्या, इशू क्या था वो समझते हैं, और उसमें मैं बड़ा ही सावधानी पूर्वक सजेस्ट करता हूं सफारी रिट्रीट को यूज करना, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, सफारी रिट्रीट को प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस कम्युनिटी दोनों ही बहुत कैजुअली यूज कर रहे हैं, बिना उसको जजमेंट को प्रॉपरली रीड किए। लेट मी टेल यू कि मैं उसमें क्या चीज आपको कहना चाह रहा हूं जो आपके क्लाइंट के मतलब की है। पहले फैक्ट समझिए क्या था सफारी रिट्रीट में। एक मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और जिसमें कि रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी देनी है। तो प्रिसाइजली जो पॉइंट, और व्हाट हैपेंड, डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दे दिया कि आपका क्रेडिट है जो, वो क्रेडिट अलाउ नहीं होता। और उसमें क्या लिखा गया, क्रेडिट क्यों अलाउ नहीं होता आपको, ये असेसी ने क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश की और डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया, और नोटिस दिया किसका हवाला देते हुए कि आपके ऊपर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी लगता है। 17(5) डी क्या कहता है कि आपको अगर आप अपनी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इन दैट केस नो क्रेडिट, इन दैट केस नो क्रेडिट।
Section 17 subsection 5 starts with a non-obstante clause that notwithstanding anything contained in notwithstanding anything contained in section 16 subsection 1 and 18 subsection 1, input tax credit shall not be allowed in the following circumstances. Then let us read clause D, क्योंकि नोटिस जो था वो क्लॉज डी का था. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखने की. क्लॉज डी क्या कहता है, एक मिनट. Goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो अभी मैं बाद में डिफरेंशिएट करूंगा इसको. क्या लिखा गया? on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of the business. मोटे तौर के ऊपर अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने खुद के लिए बना रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. उसके दो एक्सेप्शन है कि प्लांट एंड मशीनरी, एज अ प्लांट एंड मशीनरी अगर आप कर रहे हो तो क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा. ये एक उसमें एक्सेप्शन वाली बात आ गई. ठीक है, ये नोटिस उन्होंने दिया कि भाई 17(5)D में आपका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता. मैटर रीच्ड इन अ रिट पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट. वहां पर 2 पॉइंट डिस्कस किए हाई कोर्ट ने, और 2 पॉइंट कैसे क्या डिस्कस किए. पहला तो मेरिट्स की बात करते हैं, और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को लेके जो मैंने इनिशियली आपसे डिस्कस किए थे वो पॉइंट डिस्कस हुए. तो पहला पॉइंट इज कि जो ये प्रोविजन है 17(5)D, ये क्या कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कब नहीं होगा, जब प्रॉपर्टी अपने खुद के लिए बना रहे हैं. अब नाउ अपने व्हाट इज ऑन हिज ओन, तो ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है. तो ऑन हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? जब मैं किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहा हूं तो क्या मैं वो अपने लिए बना रहा हूं? जब हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचते हैं तो हमारे दिमाग में चलती है बैलेंस शीट कि भाई वो ओन मतलब मेरी खुद की एसेट और मेरी बैलेंस शीट में दिख रही है तो वो मेरी हो गई. बट कोर्ट ने इसको इस सेंस में पकड़ा कि ओन मतलब मेरे यूज के लिए. तो उन्होंने कहा भाई वो मेरे यूज के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? रेंट पर दे रहा हूं, सामने वाला उसको यूज कर रहा है. ठीक है, अब सिमिलर एनालॉजी आप लगा सकते हो वेयर हाउस में. भाई वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, कमर्शियल वेयर हाउसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, वहां भी क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी बन रही है किसके? दूसरा ही तो यूज कर रहा है उसको, दूसरे का माल रखा जा रहा है उसमें. सिमिलर एनालॉजी कैन बी टेकन अप फॉर द होटल बिल्डिंग्स. होटल में क्या हो रहा है, जो बना रहा है वो थोड़ी रहता है, वो रहने वाला कोई दूसरा है उसमें. तो इसलिए मैंने कहा एक साथ अपन और इंडस्ट्री को भी कैटर कर सकते हैं उसी जजमेंट के बिहाफ पे. तो लेकिन क्या क्या, पहला एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट, द कोर्ट डिस्कस दोज स्पेसिफिक एनालॉजीज कि जिसकी वजह से जीएसटी आया और क्यों मिलना चाहिए. जैसे मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव की मैंने आपसे बात की थी, उसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई जब आपको रेंट मिल रहा है और रेंट के ऊपर आप टैक्स चार्ज करने वाले, और दिस इज व्हाट नथिंग बट अ वैल्यू एडेड टैक्स. तो बेसिकली जो उसका मेन खर्चा हुआ है, इसका जो जिस सब्जेक्ट मैटर से आपको इंटरेस्ट वो अर्न हो रहा है, इनकम जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो उसके खर्चे का तो क्रेडिट अलाउ करना ही पड़ेगा आपको. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की बात थी ना, कैस्केडिंग इंपैक्ट खत्म करना था, तो इसलिए आपको वो क्रेडिट मिलेगा. तो वहां पर बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं किया इसको, क्योंकि अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने का मतलब क्या हो जाता है कि बाकी जहां पर भी लग सकता था वहां भी नहीं लगेगा. तो they have read down this particular aspect, उन्होंने रीड डाउन किया इस प्रोविजन को कि जहां पर ये रेवेन्यू इनकम अगर इस टाइप की जो नेचर की प्रॉपर्टीज है जैसे मॉल वाली है, तो उस केस में क्रेडिट अलाउ हो जाएगा. ये उन्होंने सफारी रिट्रीट के केस में होल्ड किया ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट. अब जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई एक हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर अपना व्यू रखता है, अपना डिसीजन देता है, तो दैट इज हैविंग अ बाइंडिंग इंपैक्ट ऑन होल ऑफ द कंट्री. तो मेरी राय में ये हम आज की डेट में, दिस मैटर इज बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट आज की डेट में ये मैटर सभी पूरे इंडिया में बाइंडिंग इंपैक्ट है. एक बात तो ये रही. अब वर्ड ऑफ कॉशन, जो मैं कह रहा था कि हम सब कई बार व्हाट्सएप चर्चा के बेसिस के ऊपर भी बात हो जाती है, इंडस्ट्री वाले अरे देखो वहां उड़ीसा में आ गया जजमेंट और सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं. अब वर्ड ऑफ कॉशन बीइंग अ प्रोफेशनल, देखिए क्या है, मैंने बहुत
स्पेसिफाई करके आपको कहा था, उस केस के फैक्ट्स ये थे कि 17(5)(b) का नोटिस था, 17(5)(d) का नोटिस था। जो क्रेडिट के जो हमारे प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस कैसे हैं? पहले तो आप 16 में एलिजिबल होने चाहिए, तो करेक्ट 16 में तो अपन मान के चलते हैं सारे क्रेडिट्स एलिजिबल हैं। फिर 17 से बाहर आने चाहिए, यानी 17 में आप स्टकअप हो गए तो नो क्रेडिट। सो 17 में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविजन नहीं है 17(5)(d), वहां पर सिमिलर नेचर का प्रोविजन और है 17(5)(c). 17(5)(c) भी है। 17(5)(c) क्या कहता है? वापस नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से स्टार्ट होके क्रेडिट नहीं मिलेगा। किस केस में? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब क्या हुआ? अगर आपने कोई, ये तो जो कंडीशन डी की थी वो तो एज इट इज है, जिसको कि रीड डाउन किया हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट ने। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर ले रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर आप ले रहे हो, और जब तक कि आप खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं आपके क्लाइंट के केस के ऊपर। लेट अस अज्यूम आपके पास एक क्लाइंट आता है कि भाई ये मैं मॉल बना रहा हूं, इसका क्रेडिट ले लूं क्या, या ये मैं होटल बना रहा हूं, इसका क्रेडिट ले लूं क्या? प्लीज डोंट गिव ब्लैंकेट आंसर। पहले उसके फैक्ट्स चेक कीजिए, उसको बुलाइए, उसको कहिए कि भाई तू ये जो बिल्डिंग बना रहा है, ये बना कैसे रहा है? ये तूने एक सिंगल ठेका दे रखा है किसी को, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को कर रखा है कि ये ठीक है पूरी बिल्डिंग आपको बना के देनी है, और यू आर परचेजिंग इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज देन मेकिंग दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इंडिविजुअल खुद खरीद रहे हो, जैसे कि मान लेके चलो मैं कोई एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, सीमेंट भी मैं ला रहा हूँ, रोडी भी मैं ला रहा हूँ, आयरन भी मैं ला रहा हूँ, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी मैं लेके मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलग से हायर किया है। In that case, I am not taking any works contract services. So 17(5)(c) will not apply to me. Only and only 17(5)(d) can be applicable on me. And उसके लिए मेरे पास as of now shelter है सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो जो ज्यादातर प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है आज की डेट में, कोई अपनी इंडिविजुअल परचेज करने की हेडेक कम लेते हैं लोग। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पूरा का पूरा, एक कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई ये पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, लेट से 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, जो भी जैसी भी बिल्डिंग है वो बननी है, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये आपको बननी है, ये स्पेसिफिकेशन है। नाउ व्हाट हैपेंस? यू हैव गिवन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। क्रेडिट विल गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(5)(c). और जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने रीड डाउन किया वो 17(5)(d) को किया, सी को नहीं किया। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट होते हुए मेरे ऊपर वो लग जाएगा, तो वो अजम्पशन गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके क्रेडिट के लिए कोई रास्ता मत निकालो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अभी बात करते हैं उसके लिए, उस केस में भी कैसे हम फायदा ले सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन कम से कम हमारी अप्रोच हमें पता होनी चाहिए कि हमें उड़ीसा हाईकोर्ट का डायरेक्ट फेवर नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहां पर दो बातें डिस्कस हुई थी, वन इज मेरिट्स 17(5)(h) और 17(5)(d) एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की क्रेडिट इसके ऊपर मिलना चाहिए। दो एनालॉजीज डिस्कस हुई थी जिससे वो जजमेंट फाइनल निकल के आया था। अगर मान के चलो आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखा, अच्छा दूसरा उसमें ये भी ध्यान में रखने का कि अगर मान के चलो डी टाइप का कोई सब्जेक्ट मैटर हो, तब भी तो ये सब्जेक्टिविटी है ना, कल को सुप्रीम कोर्ट से उल्टा हो सकता है जजमेंट, यू नेवर नो। अभी रिसेंटली वीकेसी फुटप्रिंट आप सब लोगों ने देखा ही है, लड्डा जी कह रहे थे उसके ऊपर बात भी करनी है। तो उसमें क्या था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा कि सर्विसेज का मिल जाएगा, मद्रास ने अलग बोल दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मद्रास वाले को अपहोल्ड किया। तो वो भी हमें एज एन कंसल्टेंट उसको भी दिमाग में रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मान के चलो, मेरी राय इसमें क्या होती है कि अगर मेरे पास आज की डेट में कोई क्लाइंट आता है, व्हाट आई विल से इज, क्योंकि अगर मान के चलो आज मैंने क्रेडिट नहीं लिया तो वो डूब गया, अगले सितंबर निकलने के बाद तो वैसे भी डूब जाएगा वो। जिस साल में चल रहे हैं 16(4) अप्लाई हो जाएगा और बाद वो डूब गया।
तो बेस्ट वे आउट टू हैंडल इट इज कि डू वन थिंग, आप अभी होटल बना रहे हो, आप अभी मॉल बना रहे हो, आज की डेट में आउटपुट तो है नहीं, आपका सिर्फ इनपुट है। मेंशन राइट अ लेटर टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखो कि भाई सो एंड सो इज द प्रोविजंस और this is what has been held by Honorable Odisha High Court, and following that we are availing the credit. ठीक है, और उस क्रेडिट को अवेल कर लो, उस क्रेडिट को अवेल कर लो। आज की डेट में कोई आउटपुट नहीं है तो यूटिलाइज करने की भी बात नहीं आती किसी भी तरीके से, तो उसमें ना तो यूटिलाइज करने की बात है, ना डिपार्टमेंट आपको ज्यादा, मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंट परेशान करेगा। अगर कई बार ऐसा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑफिसर टू ऑफिसर, ऑफिसर में से हो रहे आपने ये क्रेडिट गलत दिया, इसको रिवर्स करो, अदरवाइज आई विल मेक द पेनल्टी, नो प्रॉब्लम, रिवर्स इट, बिकॉज वंस यू अवेल्ड इट, देयर इज नो रीजन बाय द डिपार्टमेंट कि भाई आप वो 16(4) लग, क्योंकि हमारा इशू तो 16(4) का था, खाली टाइम लिमिट तो हमने एक बार अवेल कर लिया। नाउ रूल 37 परमिट्स यू टू रीअवेल इट एट एनी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार अवेल करके आपने उसको रिवर्स भी कर दिया ना, या आप अवेल करके यूटिलाइज नहीं करे, वन एंड द सेम थिंग। So even then in that case you can take the call कि भाई ओके ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम रिवर्स कर देते हैं, बट हम अंडर प्रोटेस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ये लेटर डाल दो वापस से। तो उससे क्या हो गया, आपका अवेल कर लिया आपने। अब आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी फैसला आएगा और मान के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से फेवर में आता है, यू विल बी एबल टू यूज दैट अमाउंट, लॉटरी होगी उस टाइम। और दूसरा वे आउट, अगर आपने रिवर्स नहीं किया, बस अभी लेके रखा हुआ है, यूटिलाइज नहीं किया, मान के चलिए 3 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 3 साल मतलब 73 का टाइम पीरियड निकल गया, उठा के आराम से यूज करो उसको, कौन मना कर रहा है? क्योंकि इट कैन नॉट बी अ केस ऑफ 74। 74 में क्या है? फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, विलफुल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहां पर तो विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन हुआ कहां, जब मैं आगे से चला के आपको लेटर के थ्रू बता रहा हूं कि मैं ये क्रेडिट ले रहा हूं, तो देयर कैन नॉट बी इन्वोकेशन ऑफ 74। इट कैन बी अ केस ऑफ एट मैक्स 73, और 3 साल बाद उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, एंड रेदर इफेक्टिवली 2 years 9 months, नॉट इवन 3 years। 2 साल 9 महीने बाद में एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के बाद से वो आपका टाइम पीरियड खत्म। नो पर्सन कैन सर्व यू 73 नोटिस। आप आराम से 2 साल 9 महीने बाद उसको क्रेडिट को यूज भी करो, कुछ भी करो, भले किसी कोर्ट का जजमेंट आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सफारी रिट्रीट, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बी केयरफुल, क्लाइंट को अकॉर्डिंगली एडवाइस करें, जब वो कैसा उसका क्रेडिट है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। नाउ लेट मी गो टू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज मिसमैचिंग, जिसके कि आज की डेट में आई मस्ट से फ्लड आया हुआ है नोटिसेस का, जी करके नोटिसेस आए हुए हैं। जिस पार्टी को देखो, जिस बिजनेसमैन को देखो, फ्लड नोटिस ही किस बात के, वो मैचिंग ही कराने लगा हुआ है। वापस सर ये जो स्पीड चल रही है अपनी, ओके ना, बिकॉज व्हाट आई वांट इज व्हाट एवर वी डिस्कस, अच्छे से डिस्कस करें, कोई भाग दौड़ में, कोई चीज जल्दीबाजी में, जितना डिस्कस होगा उतना ठीक है, नहीं तो फिर को भी दोबारा बैठ लेंगे। ठीक है लड्डा जी, चावड़ा जी, ठीक है? राइट सर, ओके, बिल्कुल सर। अभी देखिए एक बड़ा मजेदार, पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूं मैं। बैकग्राउंड क्या है इस मैचिंग का, मिसमैच के जो आपको नोटिसेस आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ऑफिसर नोटिस दे देता है आपको, टाइम किसका खराब हुआ? शुरुआत हुआ ऑफिसर से, ऑफिसर का टाइम खराब, नोटिस आपके पास आया, आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, आपका टाइम खराब, और आपने उठा के पार्टी को या उसके अकाउंटेंट को बोला, वो भी टाइम लगाने लगा, तो वो भी टाइम अपना उसमें लगा रहा, तो वो भी टाइम खराब। अब इसे ये टाइम खराब कहेंगे या टाइम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ये आप 5 मिनट बाद मेरे डिस्कस डेलिब्रेशन के बाद कॉल ले सकते हैं कि मैंने ये खराब वर्ड यूज किया, ये ठीक था या ये इसकी जगह ये होना चाहिए था कि टाइम इन्वेस्ट किया। ओरिजिनली जब जीएसटी लॉ आया था और मार्च 2021 तक जिस तरीके से एक्ट और रूल्स में लिखा हुआ है, और आज तक जो एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने अलग अलग आपको फ्रेमवर्क बताया,
रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हो गए हैं मार्च 2021 के बाद में, बट एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे। रूल्स में माइनर कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज हो गया है। वो ये था, याद कीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। 3 प्रोविजंस हैं हमारे यहां पर, रिटर्न, फाइलिंग एंड क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये साथ साथ चलता है। इट इज नॉट लाइक वैट और वैट के एक्ट आप जाके देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन अलग चल रहा है, रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन अलग चल रहा है। यहां ये नहीं है। यहां क्या है, आप चैप्टर में ही देखेंगे तो उसमें फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कैसे चलते हैं? और 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन 3 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 37, 38, 39, रूल 59, 60, 61। इनको बड़ा मजेदार है, समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक्ट उठा के देखेंगे, हमको रिटर्न 3 तरीके की मोटे तौर पे बोली गई। एक तो आपकी आउटवर्ड स्टेटमेंट, एक इनवर्ड की, और एक मेन रिटर्न। तो कानून में जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है कि सप्लायर अपनी आउटवर्ड स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिसको कि सेक्शन 37, रूल 59 और फॉर्म नंबर GSTR 1। कब तक? 10 तारीख तक। अभी कुछ लोग जो साथ में अपने वो सोच रहे होंगे सर को पता नहीं है, ये तो 10 तारीख कह रहे हैं जबकि 11 होती है एक्चुअली। उसकी भी बात कर लेंगे 11 क्यों होती है। आप एक्ट उठा के पढ़िए, उसमें 10 लिखा हुआ है। तो 10th तक अपने को एक्ट ये कहता है कि 10 तारीख तक वो फाइल करना है, और 11 तारीख को सुबह यानी ड्यू डेट के अगले दिन, कानून ये कहता है ड्यू डेट के अगले दिन आपको वो GSTR 2A टाइप की चीज दिखाई दे जाएगी। यानी कि जो आपकी सप्लायर ने रिटर्न फाइल की है वो, हालांकि वो दिख हमको पहले ही जाता है। कानून और वो प्रोसीजर साथ साथ नहीं चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा है GST में, बट दिस इज व्हाट द लॉ इज कि आपको नेक्स्ट डे दिखेगा। और फिर आपके पास 5 दिन है, यानी कि 15 तारीख तक आपको अपनी इनवर्ड की डिटेल फाइल करनी है, उस डिटेल को यूज करते हुए जो सिस्टम के ऊपर है। देखिए कानून यही है जो मैं बोल रहा हूं। अब ये होता है नहीं होता अलग बात है। कानून क्या है? सेक्शन 38, रूल 60 अप टू मार्च 2021। मार्च 2021 के बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट हमारे पास जो नोटिस आ रहे हैं वो तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के आ रहे हैं। तो लेट मी डिस्कस इन दैट कंटेक्स्ट जो नोटिस आ रहे हैं। तो हमारा रिटर्न फाइलिंग और ITC का क्लेम का मैकेनिज्म क्या है कि सेक्शन 37 ये कहता है कि आप रिटर्न फाइल करोगे अपनी आउटवर्ड की 10 तारीख तक। सेक्शन 38 ये कहता है कि आप अपनी GSTR 2 फाइल करोगे। प्लीज माइंड द वर्ड GSTR 2। अपना GSTR 2 फाइल करना है आपको कब तक? 15 तारीख तक। और उसके बाद आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करोगे विच इज GSTR 3 20 तारीख तक। अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो मैंने GSTR 3 बोला इसको हम 3B भी बोल लेते हैं, क्योंकि यहां पर लॉ में एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया था रूल 61 में कि 3B को भी हम एज एन ऑल्टरनेट रिटर्न सेक्शन 39 की मान सकते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से हो गया, इसलिए लेट अस ट्रीट इट एज 3 और 3B। अब आप में से सब लोग मुझे ये कहेंगे 3 के तो आज तक दर्शन नहीं हुए कभी। कुछ लोगों को शायद 2 के भी नहीं हुए होंगे, लेकिन एक्चुअली 2 के दर्शन हुए थे। ऐसा नहीं है 2 फाइल नहीं हुए। 2 पहले महीने में फाइल हुए थे, दूसरे महीने में भी कुछ एक 2 फाइल हुए GSTR 2। और अगर हम कानूनी प्रावधान की मैं बात करूं तो कानून बहुत क्लियर तौर पर यह कहता है कि आपको GSTR 2 फाइल करना है, और आप जो अपनी इनपुट का क्लेम लेते हैं वो GSTR 2 में लेते हैं। आपकी इनपुट का जो क्लेम है वो GSTR 2 में। जिस दिन ये हम जितने भी प्रोफेशनल इस बात को पकड़ गए, आपकी जो समस्या है ना GST की, 90% समस्या इसी बात से खत्म हो जाती है। कैसे, वो मैं बात करूंगा कैसे खत्म होती है, बट पहले ये समझना बहुत जरूरी कि हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे लेना है कानून के हिसाब से GSTR 2 में लेना है, 3B में नहीं। मेरे को जो क्रेडिट लेना है वो GSTR 2 में। Now there may be some doubt in mind of my friends sitting here. जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कह सकते हैं GSTR 2 तो सर हम फाइल ही नहीं करते, GSTR 2 की तो जरूरत ही नहीं है, GSTR 2 तो बंद कर दिया सरकार ने, और समथिंग लाइक दिस कि GSTR 2 तो अब है ही नहीं। मेरा सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है, अगर कोई मुझे अभी बता सके स्क्रीन शेयर करके
कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा कानून का प्रावधान, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें ये लिखा हो कि जीएसटीआर 2 रेसिंड किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है या किसी को फाइल नहीं करना, कहीं भी आज तक ऐसा एक भी नोटिफिकेशन, रूल या कानून में लिखा हुआ हो? बिलीव मी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नोटिफिकेशन क्या है? अप टू मार्च 2021 के, वापस मैं रिमाइंड करा रहा हूं डेट, मार्च 2021 तक के नोटिफिकेशन ये है कि आपको जीएसटीआर 2 फाइल करना है। कब से? जुलाई 2017 से लेके मार्च 2021 तक के सारे टैक्स पीरियड का आपको जीएसटीआर 2 फाइल करना है। और उसकी डेट अभी हम आपको बताएंगे, उसकी डेट हम आपको अभी बताएंगे। दिस इज व्हाट द करेक्ट लॉ। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वो ना वो बताने वाले, ना हम भरने वाले। लेकिन कानून क्या है कि अभी वो जीएसटीआर 2 की डेट बताएंगे और हम भरेंगे। ये आप भी याद रखो कि वो बताएंगे और हम भरेंगे। ये बड़ा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, ठीक है? तो हमारा क्लेम जीएसटीआर 2 में होता है, आईटीसी का सही करेक्ट क्लेम हमारा जीएसटीआर 2 में है, और 2 अभी आएगा, ठीक है? अब जो मैं आपको अब जो सिस्टम बता रहा था उसमें ये था कि जो इनिशियली हमारा जो रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म वो क्या है कि जीएसटीआर 1 सप्लायर अपलोड करेगा, जीएसटीआर 2A दिखाई देगा रिसिपिएंट को, 2A के बेसिस के ऊपर 2 बनाया जाएगा। एक यहां पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये ले लेते हैं, लेट अस से मेरा 1 करोड़ रुपए का जीएसटीआर 2A में बैलेंस दिख रहा है, जबकि मैंने जो मेरे पास इनवॉइसेस हैं वो 1.5 करोड़ रुपए हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है? अभी क्या हुआ कि जब आप सेक्शन 38 पढ़ेंगे, सेक्शन 38 रेड विद रूल 60, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके एलिजिबल क्रेडिट 1.5 करोड़ है, फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ है, तो आप उसमें क्रेडिट जो है वो पूरे 50 लाख रुपए का क्रेडिट ऐड कर दोगे, यानी 1 करोड़ एक्सेप्ट करोगे 2A का और 50 लाख रुपए अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। फाइन, क्रेडिट आपको कितने का मिलेगा? पूरे 1.5 करोड़ का मिलेगा। अब हुआ क्या, वो 50 लाख रुपए के, लेकिन आप सप्लायर बताओगे उसमें कौन कौन से जीएसटीआईएन है जिनसे आपने परचेस किया है। जीएसटीआर 2 जब आप फॉर्म देखोगे तो उसमें ये बताना पड़ेगा। जैसे ही आप बताओगे तो कानून ये कहता है, एक फॉर्म जो मिसमैच आया 50 लाख रुपए का, भाई आप तो कह रहे हो मेरे को क्लेम बनता है, सामने वाले सप्लायर ने तो दिया नहीं 1 में अपने, तो एक पोर्टल जो है वो पोर्टल एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट किसको भेजेगा? रेस्पेक्टिव सप्लायर को जिसका आपने जीएसटीआईएन डाला है। क्या भेज देगा? जीएसटीआर 1A फॉर्म में एक रिपोर्ट बना के भेज देगा। और जो सप्लायर, ओरिजिनल सप्लायर जिसके पास ये रिटर्न गई है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो चेक करेगा कि भाई मैंने इसको सप्लाई किया या नहीं किया। लेट अस अज्यूम जो हमारा 50 लाख का मिसमैच आ रहा था उसमें से 10 लाख रुपए वालों ने कह दिया कि ओके हाँ हमने फाइल किया, और वो अपनी 2A को ओके कर देते हैं, यानी कि वो हमारे 1A को यस कर देते हैं और 10 लाख रुपए मेरा क्रेडिट ऐड हो जाता है, यानी कि एक तरीके से मेरा वेरीफाइड क्रेडिट हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि मेरे पास बिल अभी भी 1.5 करोड़ के हैं। तो क्रेडिट मुझे कितने का मिलेगा? 1/10 का? आंसर इज नो, क्रेडिट 1.5 करोड़ का मिलेगा पूरा। ये लॉ में क्या लिखा हुआ है पहले मैं वो बता रहा हूं, फिर आऊंगा 36 के ऊपर भी बाद में अभी। तो क्रेडिट मुझे, सेक्शन ये कहता है कि पूरा क्रेडिट 1.5 करोड़ का मिलेगा। अभी बाकी 40 लाख तो अभी भी मिसमैच रह गया, उसके लिए कानून ये कहता है कि सेक्शन 42 में जाइए। 42 ये कहता है कि जो आपका ये 40 लाख रुपए का मिसमैच रह गया ना, देयर विल बी अ नोटिस टू बोथ द पार्टीज, बायर एंड सेलर। उन दोनों को नोटिस भेजेंगे और दोनों को बताएंगे भाई तुम अपनी करेक्टनेस बताओ। अब आप इसमें एक मैकेनिज्म समझिए, कानून कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ था कि उसमें क्रेडिट डिसअलाउ करने से पहले 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम सब लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, opportunity of being heard has to be granted before burdening any person, any taxpayer with any financial liability. So there is an inbuilt mechanism in the legal provisions कि 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? पहली बार तो 1A की फॉर्म में मिली जब आपने जीएसटीआईएन डाला, दूसरी बार एक नोटिस अलग से और आया, अब भी जाके मैच नहीं होता है तो जाके आपका क्रेडिट डिसअलाउ होगा। दिस इज व्हाट हैज बीन स्टेटेड बाय द सेक्शन 37, 38, 39 रेड विद सेक्शन 42, रेड विद रूल 59, 60, 61। ये हमारा एक प्रावधान है पूरा। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। तो जब कानून के प्रावधान पढ़ते हैं तो वो इस तरीके के हैं।
इसका अगर मैं सार आपसे डिस्कस करूं, ये जो कानून ओरिजिनली आया था, इसका सार ये है कि सब कुछ सिस्टम जनरेटेड। क्या सिस्टम जनरेटेड? GSTR 1 सिस्टम जनरेटेड, GSTR 2 सिस्टम जनरेटेड, एंड कंप्यूटर विल जनरेट द मिसमैच रिपोर्ट। मिसमैच रिपोर्ट कौन सी? जिसमें कि दोनों टैक्स पेयर के बीच में बात नहीं हो पा रही है, कि जम नहीं रहा है कि भाई वो कह रहा है कि भाई मैंने को तो क्रेडिट लेना है, वो कहता है मैंने सप्लाई नहीं किया। तो दिस इज द ओनली मिसमैच रिपोर्ट which is to be generated automatically by the computer system, meaning thereby GSTN, and उसका वेरिफिकेशन होना था। और अभी वास्तविकता में हो क्या रहा है? पूरा देश, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे टैक्स प्रोफेशनल हो, चाहे टैक्स पेयर हो, वो सब वो मिसमैच को रिकंसाइल करने मिलेगा। मिसमैच कैसे? जो काम कंप्यूटर को करना था वो कंप्यूटर नहीं कर रहा। कंप्यूटर करेगा कैसे? कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर कर ही नहीं सकता ना। कंप्यूटर को कोई चीज मिसमैच रिपोर्ट बनाने के लिए दो डेटा चाहिए, कि ये अपलोड किया, ये इसने अपलोड किया, ये इसने अपलोड किया, दोनों को मैच कराना। यहां तो सिर्फ वन अपलोडिंग हो रही है। हो क्या रहा है? सिर्फ सप्लायर ही तो अपनी इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड कर रहा है, रिसिपिएंट तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड ही नहीं कर रहा। तो मैचिंग होगी कैसे करेक्ट? अब वो मैचिंग उल्टी सीधी चीजों से होने लग रही है। 3B से मैच कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर लो, आप अपनी और दूसरी चीजों से मैच कर लो। तो जो करेक्ट जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि दोनों लोग अपना अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जहां पर डिसएग्रीमेंट है टैक्स पेयर के बीच में, वो मिसमैच रिपोर्ट जीएसटीएन जनरेट करके दे देगा। और उसको आप क्या कहते हैं, दोनों पार्टी को बुला के ऑफिसर पूछ ले। डीवाई बीथल जैसे जजमेंट की जरूरत ही नहीं होती अगर मान के चलो ये सिस्टम तरीके से काम करते। तो डीवाई बीथल ने क्या बोला? अभी मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, डीवाई बीथल ने क्या बोला कि भाई आप सप्लायर वो जो बायर है, बायर बता रहा है कि मैं उससे खरीद के लाया हूं, उसको मैंने टैक्स दिया है, और आप उसके पास तो जा नहीं रहे, डायरेक्ट बायर से रिकवरी कर रहे हो। कैसे? नॉट अलाउड। तो अगर ये जो सिस्टम ठीक चल रहा होता तो क्या होता कि वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन चले गए ना, 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बायर से सरकार रिकवर भी कर सकती थी। तो ये जब हम थीम एक बार बेसिकली दिमाग में रखते हैं, अब हम आते हैं इसके ऊपर जो हमको नोटिसेस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। मैंने आपको लीगल प्रोविजन आपसे डिस्कस कर लिया, अब मैं बात करता हूं मिसमैच के नोटिसेस की, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, इन सभी नोटिसेस को। पहला, जो पीरियड कवर होता है 1 जुलाई 2017 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक का, ज्यादातर नोटिसेस इसी पीरियड के अभी, क्योंकि 17, 18, 18, 19 के ऊपर अभी ज्यादा फोकस है। तो 17, 18 पूरा, 18, 19 पूरा, और 19, 20 में भी हमारा अप टू 8 अक्टूबर 2019। ये डेट कहां से आई? क्योंकि 9 अक्टूबर से रूल 36(4) पिक्चर में आ गया। उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग अलग पीरियड में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप मेरी बात से आई थिंक इत्तेफाक रखेंगे कि क्या GSTR 2A, प्लीज माइंड माय वर्ड, क्या GSTR 2A क्रेडिट डिसअलाउ करने का डॉक्यूमेंट हो सकता है? अभी 36(4) को भूल जाइए, क्योंकि 8 अक्टूबर 2019 तक की मैं अभी बात कर रहा हूं। 8 अक्टूबर 2019 तक 36(4) आया ही नहीं था। 2A क्या है? एक फैसिलिटेशन है सो दैट आप अपनी GSTR 2 भर सको। और अगर GSTR 2 में कम अमाउंट दिख रहा है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्रेडिट आपको उतना ही मिलना है जितने की आपके पास इनवॉइसेज हैं, या जितना का आपका पूरा का पूरा क्रेडिट का क्लेम है। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2017 से 8 अक्टूबर 2019 तक की, उस पीरियड में के लिए जो नोटिस है। आई एम सरप्राइज टू सी, ये क्या बेवकूफी के नोटिस आ रहे हैं जो कभी जिंदगी में सस्टेन नहीं होंगे आगे आने वाले टाइम में। असेसिंग अथॉरिटी क्या कर रही है? बस वो 2A और 3B में डिफरेंस है, चलो जी आपको नोटिस सिखा दिया। अरे जरूरत क्या है? मेरा सिर्फ एक सिंपल रिस्पॉन्स है। डिपार्टमेंट पूछता है क्यों ये रिकंसाइल करा के दूं, मैं पूछता हूं क्यों रिकंसाइल करा के दूं? मेरे को जरूरत ही नहीं है रिकंसाइल करा के देने की। व्हाई शुड आई रिकंसाइल इट? कानून में कहां लिखा है कि इससे मुझे रिकंसाइल कराना है? अगर मुझे रिकंसाइल एट ऑल कराना भी है तो वो 2 से कराना है, नॉट 2A से। आप मुझे एक सिंगल प्रोविजन बताइए। मतलब दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू द ऑफिसर, मैं राइटिंग में देता हूं ये क्वेश्चन, कि आप मुझे नोटिस दे रहे हो रिकंसाइल कराऊं, मैं क्यों कराऊं? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट GSTR 2A? और GSTR 2A तो रोज तो चेंज हो जाता है। अब ये चेंज होने वाली बात के ऊपर एक मेरे को बात दिमाग में है कि एक केस में आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, आप शायद हो सकता है आप उसको यूज करके बहुत अच्छा काम कर पाओ। एक सर्च केस में मेरा पिछले 2 साल से मैंने डिपार्टमेंट को अटका रखा है सिर्फ एक चीज के ऊपर। लेट मी टेल यू हाउ। सेटल्ड सिस्टम है, कोई भी आदमी, ये हैरेसमेंट नहीं हो सकता किसी एसएससी का। आप कोई भी कैजुअली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते किसी से। Now what happened in one of the search cases,
सर्च हो गई, सब बात हो गई। और सर्च के पीछे रीजन, सर्च के तो रीजन ही अलग होते हैं। वो उन्होंने जो अपना क्या रीजन, सर्च का रीजन क्या रहा है, वो मिसमैच। साला बेवकूफ आदमी सर्च का अगर प्रोविजन जाके पढ़ो, सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में जो रीजन रिकॉर्ड करने की बात करता है, वहां पर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है ही नहीं, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है ही नहीं। वहां पर जो सर्च होने के जो रीजंस हैं जीएसटी लॉ, उस नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस है, उससे इंस्पेक्शन हो सकता है, सर्च नहीं हो सकती। सर्च होने का सिर्फ और सिर्फ जो एक रीजन है वो ये है, आपके गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनीथिंग हैज बीन कंसील्ड, जो कि आप नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ इस वजह से सर्च हो सकती है। देयर इज नो अदर रीजन फॉर सर्च इन द जीएसटी लॉ। अब वो क्या करते हैं जी, मिसमैच हो गया। मेरे हिसाब से तो मिसमैच पे बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, सर्च कहां से कर दिया आपने? एनीवे, नंबर 1, now what happened immediately after search, we got a notice in the client's case. उसमें क्या लिखा हुआ कि भाई आपके जो जीएसटीआर 2 में बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2.5 करोड़ रुपए का, और आपने क्लेम कर रखा है 3 करोड़ रुपए। तो काइंडली एक्सप्लेन अस। अब देखिए, खुदा ना खास्ता ये भी किस्मत होती है। मैंने जीएसटीआर 2A चेक करवाया, जीएसटीआर 2A में बैलेंस जो आ रहा था वो 2.5 नहीं आ रहा था, वो उल्टा और कम आ रहा था, 2 करोड़ 30 लाख आ रहा था, 2 करोड़ 34 लाख या समथिंग ऐसा आ रहा था। मतलब जितना वो कह रहा है उससे भी कम आ रहा है। What I did is, मैंने कहा एक काम करो, पहले तो मैंने सिर्फ रेस्पॉन्स पे एक ही चीज पूछा। मैंने कहा इन आवर हम्बल ओपिनियन द नंबर्स, द फिगर मेंशन्ड बाय यू इन द जीएसटीआर 2A इज नॉट करेक्ट, योर नोटिस इज रॉन्ग। वो कह रहा है जीएसटीआर 2A में 2.5 करोड़ आ रहा है, जबकि मेरे पास जो जीएसटीआर 2 की मैं जिस दिन कॉपी निकाल के देखा उस दिन 2 करोड़ 34 लाख रुपए आ रहा है, उससे कम आ रहा है उल्टा। तो मैंने उसके नोटिस का ये जवाब दिया, आपने जो ये नोटिस जो मुझे दिया है जिसमें लिखा है जीएसटीआर 2A में 2.5 करोड़ आ रहा है, and probably on the basis of which you have initiated the search, you have conducted the search, kindly let me know from where you get this data, 2 crore 50 lakh rupees. This is wrong data. उनके गले में आ रखा है, 2 साल हो गया, आज तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया उनसे, और सर्च के बाद की सारी प्रोसीडिंग डल पड़ी हुई है। तो आप कोई हाइपोथेटिकली और हवा में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो होता क्या है, हम सब जानते हैं जीएसटीआर 2A का डेटा वेरिएबल होता है, लेकिन वो उनको पता नहीं था उस टाइम, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, आ रहा होगा उस टाइम 2.5 करोड़। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग माय एस्पेक्ट। सो डिपार्टमेंट का कभी भी कोई नोटिस आता है, उसमें देखो क्या 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 उसमें गलती है। डिपार्टमेंट जैसे अपनी गलतियां देखता है, तो आप भी देखो ना वो क्या गलतियां कर रही हैं, पॉइंट दैट आउट। हमारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी नौकरी पे आ जाती है गलत काम करने से, तो इसलिए वो डरते हैं। कमिंग बैक टू माय पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, कि जो ये मिसमैच के नोटिसेस 1 जुलाई 2017 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक के, जो मेरे राय में कानून में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है जो कहे कि हमको जीएसटीआर 2A से मैच कराना है। अब मैं आपको इसका सपोर्ट भी देता हूं। मैं आपको इसका सपोर्ट बताता हूं कि जहां पर सरकार ने खुद ने ये चीज मानी है। इफ एनीवन वांट्स, वन कैन नोट इट डाउन। सबसे पहले 18 अक्टूबर 2018 को एक प्रेस रिलीज आती है, 18 अक्टूबर 2018, जबकि इफ यू कैन रिकलेक्ट 17-18 का जो फर्स्ट वो ईयर था हमारा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का, 17-18, और उसमें भी जो टाइम लिमिट जैसे 16/4 का आपको याद होगा कि वो दिमाग में बहुत शोर शराबा था कि सितंबर तक क्लेम करना है, सितंबर तक क्रेडिट क्लेम करना है, जो कि बाद में डेट एक्सटेंड होकर मार्च कर दी गई थी। तो सितंबर की ड्यू डेट तक हमको क्रेडिट क्लेम करना है। ये बड़ा बहुत उस टाइम थोड़ा सब लोगों के दिमाग में चला था, अरे भाई सारे देख लो अच्छे से, कोई क्रेडिट वगैरह रह तो नहीं गया, कोई बिल वगैरह जिसका क्रेडिट लेने से हम छूट तो नहीं गए। उस टाइम पर 18 अक्टूबर को सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की, यानी कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से सिर्फ 2 दिन पहले। सितंबर की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर तक हम वो क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, एक जनरल परसेप्शन। उससे 2 दिन पहले, क्योंकि बहुत शोर शराबा हो रहा था, सरकार के पास सैकड़ों रिप्रेजेंटेशन पहुंच रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया, ये कहते हुए साफ, जिसमें लिखा कि आप जो क्रेडिट है उसका 2A से कोई लेना देना नहीं है, आप 2A में मिला के फिर क्रेडिट लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कानून में। उन्होंने खुद ने ये वाली चीज की, आप 2A से बाद में मिलाते रहना, जो क्रेडिट क्लेम करना है वो कर लो रिटर्न फ्री। दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड in the press release issued by the CBIC. Number 1. So ये एक पहला सपोर्ट आता है। But see, as a professional we must know कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट प्रेस रिलीज होती है, या कोई भी ये FAQ टाइप होते हैं, या कोई भी ये डॉक्यूमेंट जो सरकार इशू कर देती है विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, इनका बाइंडिंग फोर्स नहीं होता, किसी के ऊपर भी नहीं होता। एसएससी के ऊपर तो कभी नहीं होता, इवन अथॉरिटीज के ऊपर भी नहीं होता। यानी प्रेस रिलीज, कल को हम कानूनी तौर पे ये नहीं कह सकते ऑफिसर को, देखो कि प्रेस रिलीज है,
तो इसको आपको ये मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक समझने की बात, ये उसलिए रेफर करते हैं। इसके लिए आप एक जजमेंट अगर देखना चाहें तो एक जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अंजुम एमएच घासवाला, उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि अगर इवन सर वो इनकम टैक्स का जजमेंट है कि जिसमें सेक्शन 119 जहां पर सर्कुलर इशू करने की पावर है इनकम टैक्स में, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन करने की, उसमें यहां तक लिखा है कि कोई भी प्रेस रिलीज या दूसरा डॉक्यूमेंट बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर बाइंडिंग है अथॉरिटीज के ऊपर, दैट टू व्हिच इज इशूड अंडर सेक्शन 119। अगर कोई सर्कुलर अदरवाइज भी इशू हो गया, दैट इज आल्सो नॉट बाइंडिंग। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट जजमेंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पैरा 31 या 32 है उस जजमेंट का, अंजुम अहमद खास वाला। वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट, प्लीज रीड दैट। कई बार जब अथॉरिटीज जो आ जाती है, नहीं जी ये तो हमको मानना ही पड़ेगा, तो उनको समझाने के लिए बड़ा बहुत अच्छी सी चीज है, क्योंकि ये तो फेवरेबल है प्रेस रिलीज, लेकिन कई बार नेगेटिव प्रेस रिलीज भी होती है ना, तो वहां पर आपको बड़ा काम देगा। उसके बाद दूसरे सिनेरियो, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बताया, एक इसमें तो क्या हुआ था, प्रेस रिलीज में साफ इस तरीके से लिख दिया गया। उसके बाद एक सर्कुलर इशू हुआ, ये रूल 36(4) आने के बाद, ठीक है, यानी कि मैं आपको जो पीरियड डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं 8 अक्टूबर 2019 तक का। उसके बाद 18/11/2019 को एक सर्कुलर इशू किया, वो सर्कुलर था रिफंड के कंटेक्स्ट में। रिफंड के कंटेक्स्ट में एक सर्कुलर इशू हुआ कि भाई हमें ये रिफंड देने का क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। यू मस्ट बी रिकलेक्टिंग कि वो मैनुअल प्रोसीजर चल रहा था उस टाइम। तो ऑफिसर जो इंसिस्ट कर रहे थे, वो परेशान करने वाले हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। 2A में आ रहा है तो भी बिल दे दो, बिल है तो 2A ले आओ, मतलब दोनों चीजें लेके आओ, सारे हाथ में लड्डू चाहिए उनको। उस टाइम के ऊपर एक सर्कुलर जो मैं बता रहा हूं आपको, 18/11/2019 को सरकार ने, सीबीआईसी ने इश्यू किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर्कुलर नंबर 125, मास्टर सर्कुलर टाइप था, जो कि रिफंड्स का था, जिसमें रिफंड रिलेटेड सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए थे। सो वन ऑफ द एस्पेक्ट वाज जीएसटीआर 2A। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि अगर ऑफिसर्स को एक इंस्ट्रक्शन था कि अगर मान के चलो जीएसटीआर 2A में कोई क्रेडिट आ रहा है तो उसके लिए आप बिल मत मांगना, तो उसके लिए बिल मत मांगिए। और जो जीएसटीआर 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा, अगर कोई आदमी उसका रिफंड लेना चाहता है, उस क्रेडिट का रिफंड लेना चाहता है, तो आप उससे बिल की कॉपी ले लो और रिफंड प्रोसेस कर दो। मतलब एक तरफ तो आप मुझे ये कह रहे हो कि आप अपने बिल की कॉपी को देकर रिफंड तक ले सकते हो आईटीसी का, और आज मुझसे नोटिस देके पूछते हो कि वो 2A में नहीं आ रहा। अरे भाई, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2A में लाने की जरूरत ही नहीं। एंड सिमिलर सर्कुलर इसी सर्कुलर का फिर मॉडिफाइड वर्जन आया था, क्योंकि 36(4) अब पिक्चर में आ गया, तो उनको रियलाइज हुआ कि 36(4) की वजह से हमको मॉडिफाई करने की जरूरत है उसको। तो यही सर्कुलर का एक रिवाइज वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर्कुलर नंबर 135, जो कि 31 मार्च को इशू हुआ था, 31 मार्च 2020 को, जिसमें कि उन्होंने ये वाला एस्पेक्ट फिर डिस्कस किया और बताया कि क्योंकि वहां पर जो 20% की लिमिट है, तो उस लिमिट तक आपको अलाउड रहेगा, अदरवाइज। तो बेसिकली एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लॉ में तो क्रिस्टल क्लियर है कि इसकी जरूरत ही नहीं है 2A से किसी भी तरीके के मैच कराने की, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनसे ये एनालॉजी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट, अभी तक मैं जो डिस्कस कर रहा था, मिसमैच नोटिस जो आपके हैं कब तक के, 8 अक्टूबर 2019 तक के। लेट अस से 8 अक्टूबर 2019 के बाद की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 2019 को एक 9 अक्टूबर 2019 को एक ये आता है, क्या कहते हैं, आपका रूल आ गया, रूल 36(4). आई विल हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू डिवोट maybe 5 to 10 minutes time, 5 to 10 minutes only, not more than this, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप दो प्रोविजन में बता रहा हूं, उनको खुद पढ़िएगा। क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो 36(4) जिसकी हम बात कर रहे हैं, 36(4) पढ़िएगा, क्योंकि जनरली पढ़ने में जिस तरीके से हम देखते हैं उसमें तो ये आ जाता है कि भाई वो 2A में क्या लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज उस तरीके की नहीं है। एक्चुअली लैंग्वेज वो यूज करते हैं कि सप्लायर ने जिसका की डिटेल्स अपलोड कर दिया नहीं कर दी। और फिर आप लैंग्वेज पढ़िए, सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, 38 सबसेक्शन 3 एंड 42 सबसेक्शन 3। ये मैं आपको 3 स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं। लेट मी रिपीट दैट, अगर कोई पढ़ना चाहे और नोट नहीं कर पाया तो लेट मी रिपीट दैट। सबसे पहले पढ़िए सेक्शन रूल 36(4) और इसको कंपेयर कीजिए सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3
and section 42 subsection 3. Excuse me. जब आप देखेंगे तो मैं समरी बता दे रहा हूं, you will 100% agree with me, I'm sure. रूल 36(4) मोटे तौर पर क्या कहना चाह रहा है, गर्म पानी बेटा। रूल 36(4) क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके सप्लायर ने अपलोड किया है, यानी कि मोटे तौर के ऊपर जो मेरे GSTR 2A में दिखा रहा है, उसके 20% से ज्यादा हम आपको क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। ये उन्होंने बोला 9 अक्टूबर 2019 को, जो कि 1 जनवरी 2020 को 10% कर दिया, and it was made as 5% with effect from 1 January 2021. और सेक्शन क्या कहता है, जो मैंने सेक्शन अभी आपको बताया, वो सेक्शन ये कहता है कि आप अपना 2A यूज करो, और उस 2A में अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो जितना भी है वो अपना एक्स्ट्रा ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो क्रेडिट लिया था कि 1 करोड़ मेरे 2A में दिख रहा है और मेरा पास इनवॉइस है 1.5 करोड़ के, तो दैट सेक्शन स्पेसिफिकली परमिट्स यू कि आप उसमें 1.5 करोड़ रुपए का क्रेडिट ले लीजिए। उसमें साफ लिखा है that the taxpayer registered person may include details of inward supplies in respect of such supply जो कि उसके वहां पर रिफ्लेक्ट में नहीं हो रहे, which has not been declared by supplier under section 37 subsection 1. This is what has been specifically written in section 38 subsection 1. तो यहां पर मैं क्या आप, और यही सिमिलर एनालॉजी आपको जो मैंने पूरा प्रोविजन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और क्लियर कट मुझे ऐसा लगता है रूल इन कॉन्ट्रावेंशन है एक्ट के प्रोविजन के। प्लीज माइंड, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसके बाद अथॉरिटी, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रूल 36(4) को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कराने का। देयर आर सो मेनी अदर प्रोविजंस एज वेल, देयर आर सो मेनी अदर लॉजिक्स एज वेल कि ये पावर कहां से लेके आ रहा है। अब 16 में कई लोग कहते हैं 16 से पावर लेके आ रहा है, मेरा मानना है 16 से पावर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि द रिट व्हिच आई फाइल्ड वन ऑफ द रिट्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वहां पर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम फैसिलिटी दे दें। जो सरकार ने जवाब दिया, उन्होंने कहा ये रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 16 में आ ही नहीं सकता। 16 कहता है सिर्फ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कॉमा सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, सो देयर इज नो, सरकार खुद कह रही है इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। So many all the high courts has given notices to central government in this matter, I think. Yes sir, I filed this, ये मेरा जो खुद का कराया हुआ है ये 2019 9 को आया ना, उसके बाद मेरे क्लाइंट को नोटिस आ गया था जनवरी में, तो आई थिंक अर्ली 2020 में मैंने केस ये फाइल किया था, जिसमें कि जो मैं आपको पॉइंट रेज कर रहा हूँ, ये पॉइंट बाकायदा हमारे ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने नोट किया है अपने उसमें कि भाई पिटिशनर ये क्लेम कर रहे हैं, और जो प्राइम ऑफिसर दिख रहा है कि भाई रूल 36(4) इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 38 इनसे। दूसरा फिर एक पॉइंट ये भी आता है इसमें इलॉजिकल जो है कि 43A में ऐसी चीज लिखी हुई है लेकिन 43 आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। मीनिंग देयर बाय मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट दिस इज व्हाट द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगता है, जिसमें अगर आप चाहें तो राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, सॉरी नॉट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि अभी पब्लिक इशू आया थोड़े दिन पहले, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उसका राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट देखेंगे, फर्स्ट इंट्रीम ऑर्डर में ये जो लिखा हुआ है वो क्लियर कट लिखा हुआ है, ये वाला ऑब्जर्वेशन कि भाई रूल 36(4) इज इन वायलेशन ऑफ, इज अल्ट्रा वायरस टू सेक्शन 38 एंड 42। तो एनीवेज ये मेरा पॉइंट था, लेकिन अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। अब हम सब लोगों को बीइंग प्रोफेशनल एक चीज और समझनी चाहिए, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं है, यानी जब तक वो क्वैश नहीं हो जाता किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं राजस्थान, कोई भी हो, कहीं भी हो, गुजरात है, कोई भी हो, दूसरा कोर्ट है, जब तक कोई रूल या नोटिफिकेशन जो कि इश्यूड है सरकार के द्वारा, इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं कर दे या रीड डाउन नहीं कर दे, तब तक देयर इज अ प्रिजम्पशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो वैलिड है। जतिन अरजाई के या लड्डा जी के कह देने से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। जतिन अरजाई यहाँ पर लेक्चर में 2 घंटे की जगह 4 घंटे भी लगा लेगा कि ये समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा, बट कानून यही है कि वो वैलिड है। ठीक है, तो अब ये हमको ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है, पहले हम खुद तो कन्विंस हो कि जो हम करने जा रहे हैं वो करेक्ट बात है या नहीं। तो व्हेन वी
वी ऑन ourself is convinced कि हाँ भाई ये रूल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ गलत बात बोल रहा है, तब हम देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे उसको फैसिलिटेट करें। अब मैं आपसे डील करता हूं कि नोटिसेज अगर पीरियड आपके 9 अक्टूबर 2019 के बाद के हैं तो उसको कैसे डील करना चाहिए। इसमें भी डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं। अब केसेस देखो सर, कई कैसे, अब केसेस में क्योंकि ये लिटिगेशन का मैटर हो गया, लिटिगेशन का मैटर है तो एक्चुअली अल्टीमेटली वो आपके मॉनेटरी अमाउंट कितना है ये बड़ा मैटर करता है। हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन वास्तविकता में वो मैटर करता है। अब अगर मान के चलो किसी का बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है तो रिकवरी हो सकती है, क्योंकि रूल तो वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन ये है कि अंटिल अनलेस डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस, सो वो रिकवरी हो सकती है उस आदमी को। असेसिंग अथॉरिटी कैन प्रोसीड एंड रिकवर दैट अमाउंट, पास करेगा ऑर्डर, रिकवरी हो सकती है। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दैट टाइप ऑफ क्लाइंट इज जहां पर की वैल्यू ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है, यू फाइल अ रिट पिटीशन। फाइल अ रिट पिटीशन, नंबर 1। कई बार ऐसा होता है नहीं सब, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि रिट पिटीशन फाइल कर सकते, क्योंकि क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है भाई इतना। भाई लिटिगेशन इज अ कॉस्टली अफेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी कोर्ट वोट जाओगे, सारी चीजें होंगी, नंबर ऑफ हियरिंग्स होती हैं, तो उसमें कोर्ट कहता है, वो कहता नहीं जी मेरा तो 15 लाख रुपए का क्रेडिट है, 10 लाख रुपए का क्रेडिट है, तो मैं उसमें लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता। तो ऐसे कोर्स में क्या करना चाहिए, मेरी पर्सनल राय में, whenever there is any notice comes, cite these aspects which we have discussed and ask the officer to issue the show cause notice, no problem. Ask the officer to issue show cause notice. The moment they issue the show cause notice, you get it adjudicated. अपना response रखो, सारी बात रखो, वो मानेगा नहीं आपकी बात, इसमें कोई दो राय नहीं। He will pass the order with a tax amount, that means ITC amount, along with interest, maybe along with penalty, depending upon the officer, depending upon the case. The moment they passes, you go to the first appellate, because going in the first appellate authority will require only deposition of 10% of the amount, और जो probably आपके पास हो सकता है ITC available. So 10% of the tax amount only. Interest penalty is not required to be deposited. Pre-deposit is 10% of the tax. So for appeal में चले जाइए, अपील में नहीं, अगर इसमें नहीं आता तो let us assume आज से साल डेढ़ 2 साल बाद फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट कर देती है और तब तक भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता, तो सेकंड अपील में चले जाइए। तब तक आप दुआ कीजिए कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी बन जाए, यानी कि ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। नहीं हुआ तो फिर वापस वही हाईकोर्ट का रास्ता हो गया, क्योंकि हम तो हाईकोर्ट का रास्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे, यही तो हो रहा था उसमें। तो एनीवे, ये एक प्रोसेस हो सकता है, मतलब अपीलेट रूट वाला, क्योंकि अगर मीनवाइल उम्मीद है कि तब भाई 1.5-2 साल तक तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई किसी ना किसी कोर्ट से तो जजमेंट आ ही जाएंगे। द मोमेंट दैट जजमेंट कम्स, यू कैन गेट इट अप्लाइड बाय थ्रू अ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इन योर ओन केस। और वो कुसुम इंगट याद रखिए कि भाई अगर आज गुजरात का नहीं है, राजस्थान से भी आ गया तो वो भी अप्लाई करवाइए। तो पढ़ा के देखो कुसुम इंगट क्या क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है। तो ये वाला एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये बात रही हमारी 9 अक्टूबर 2019 से लेके आज तक की। और आज से भी मैं अगर करेक्ट वर्ड यूज करूं तो टिल अ डेट येट टू बी नोटिफाइड, क्योंकि अब हम सब लोग जानते हैं हमारा स्टैंड और मजबूत हो गया है। इसमें मजबूत कैसे हो गया कि सरकार ने अभी एक अमेंडमेंट किया, सरकार को भी समझ में आ गया ये उनसे गलती हो गई 36(4) वाली, क्योंकि डायरेक्टली रूल्स बना दिया ऐसा जो कि एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, तो अब उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। उल्टी चलती है ना जीएसटी में सिस्टम, पहले ऑर्डर आता है, फिर रूल बनते हैं, फिर कानून एक्ट बनता है। तो अब उनको समझ में आया ये गड़बड़ हो गई, तो एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि एक्ट में पावर होनी चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एक नया लेके आ गया, जिसमें कि जो 36(4) में लिखा हुआ था वही वाली बात वहां पे। तो बेसिकली जब, और वो नोटिफाई अभी हुआ नहीं है, वो अभी नोटिफाई होना है। अभी आज भी कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, अब उसमें आई एम नॉट श्योर, मैंने देखे नहीं है क्या आए हैं, जिसमें कि कुछ डेट्स वो अगर अनाउंस करेंगे कि ये वाला अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होना है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मे बी इन टाइम्स टू कम वो नोटिफाई हो जाएगा। और जब से वो नोटिफाई हो जाएगा तब से फिर ये प्ली खत्म हो जाएगी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% खत्म हो जाएगी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, देयर इज अ फाइट बिटवीन प्रोविजन व्हिच इज कंटेन्ड इन रूल्स एंड एक्ट, एंड वी ऑल नो जब रूल्स और एक्ट के प्रोविजन में फाइट होगी तो कौन जीतने वाला है? एक्ट हैज टू प्रिवेल।
बट व्हाट गोना हैपन जब हम 16(2)AA इफेक्टिव में हो जाएगा, एंड आज की डेट तक सरकार ने सेक्शन 37, 38, 39 को मॉडिफाई नहीं किया है, 48, 42 को मॉडिफाई नहीं किया है। तो जो मैं आपको चीज कह रहा था, ये रूल 36(4) है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन में है किसके, 38 और 42 के। 30 तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह 16 में तो प्रोविजन डाल दिया, लेकिन 38 और 42 को अमेंड नहीं किया। तो आने वाले टाइम में, यानी इस अमेंडमेंट को जब इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद में इट विल बी अ फाइट बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कि दो प्रोविजंस कानून के डिफरेंट कुछ बात कर रहे हैं, कौन सा प्रिवेल करे। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई 16(2) नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से स्टार्ट होता है, करेक्ट, लेकिन वो नॉन ऑब्स्टेंटे किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 16 के लिए, पूरे एक्ट के ऊपर नहीं है, notwithstanding anything contained in this section. So that is important कि 37, वो 37, 38, 42 कुछ और कहेंगे, 16 कुछ और कहेगा, तो कौन सी बात प्रिवेल करे, तो भी फाइट रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ तो फाइट नहीं रहेगी, इवन इन माय हम्बल ओपिनियन ये अमेंडमेंट आने के बाद भी फाइट रहेगी, बट वो फाइट वीक हो जाएगी। आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है, यानी कि कोई भी अभी तक के जो जितने भी आपके क्लाइंट्स के नोटिस हैं, वो इस एनालॉजी से आप डील कर सकते हैं। अभी एक जो चीज मैंने डिस्कस किया, इसी के लाइन में एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं आपसे, रेक्टिफिकेशन का इशू। रेक्टिफिकेशन का इशू क्या है, आईटीसी में कुछ गड़बड़ हो गई, क्रेडिट लेने में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखिए अब विद परमिशन ऑफ चावड़ा जी, लड्डा जी और सब लोग, अगर आप कहो तो मैं इस रेक्टिफिकेशन को थोड़ा सा खाली आईटीसी से ले जाके टैक्स के ऊपर भी ले जाता हूँ। आई थिंक सबके लिए यूजफुल होगा। प्लीज सर प्लीज, क्योंकि गलतियां जो होती हैं वो सिर्फ आईटीसी में नहीं होती, आउटपुट में भी होती है। छोटे से एक केस के साथ स्टार्ट करता हूं आपको, फिर लीगल प्रोविजन डिस्कस करूंगा, फिर स्पेसिफिक वापस केसेस के ऊपर और साइड करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल केस मेरा हैंडल किया हुआ जो आपको बता रहा हूं, आज नहीं, आज से 2 साल पहले, पहला साल जीएसटी का 2017-18, पहला महीना जुलाई 2017। एक आदमी से क्या हुआ, एक आदमी के अकाउंटेंट से क्या हुआ कि ऐसा कुछ उसका क्रेडिट था कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट क्लेम करना था 3B में बिल्कुल ठीक कर लिया, जो सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट था वो ऐसा कुछ था 73 लाख समथिंग ऐसा कुछ था। तो सी और एस में से एक तो करेक्ट क्लेम कर लिया 73 समथिंग, जो दूसरा वाला था उसमें वो डॉट लगना था ना, जो 2 डेसिमल के बाद वो वाला रह गया, तो वो 73 लाख की जगह 73 करोड़ हो गया। और अब जिन्होंने अभी शुरू किया होगा उनको शायद दिमाग में होगा, नहीं वो तो सेम ही फिगर पकड़ता है, पहले पकड़ लेता था अलग, राइट, पहले सी और एस की फिगर अलग अलग पकड़ लेता था। अब आजकल मेरे ख्याल से ऐसा कोई उसमें साइट में रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक जैसा लेता है। right. तो ऐसा कुछ हो गया और वो उसको भी नहीं पता चला, उसको भी पता नहीं चला। अच्छा, और मजेदार बात देखिए क्या हुआ कि ये मिस्टेक सिर्फ एक मिस्टेक नहीं थी, ये तो एक प्राइम मिस्टेक मैंने बताई, देयर आर प्लेथोरा ऑफ मिस्टेक्स। और लेकिन एंड ऑफ द डे एक बात तय थी, टैक्स जितना बनना था ना, टैक्स कैश में उतना ही पे हुआ था, बाकी सब कुछ गड़बड़ था। बस सही चीज सिर्फ एक थी कि नकद में जितना एक्चुअल से जितना टैक्स पे करना होना चाहिए था वो टैक्स पे होना चाहिए, ये दैट्स इट। बाकी मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया उसमें इतनी मिस्टेक कैसे हो गई, मुझे ये भी समझ में नहीं आया उस केस में कितनी मिस्टेक कैसे पहले वो कंट्रोल भी नहीं था सर कि पहले क्रेडिट यूटिलाइज करो बाद में कैश मिले। हाँ, वो कुछ चक्कर नहीं था। तो अब उसमें तो उन्होंने क्या किया, वो इतना गड़बड़ हो गया कि जो सप्लाई की वैल्यूज डिक्लेयर हुआ वो 40 करोड़ की जगह 400 करोड़ हो गया, और वो पता नहीं क्या क्या हो गया। आज तक मैं कह रहा हूँ ना, आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या है। और मुझे बहुत अच्छे से इसलिए याद है ये सारी चीजें कि हमारा क्लाइंट नहीं था, कहीं से रेफर्ड मैटर था। आई थिंक दिस इज नॉट ऑन यूट्यूब ना, तो इनफॉर्मली वी कैन डिस्कस। आपका यूट्यूब वगैरह के ऊपर थोड़ी जा रहा है? नहीं, फाइन। आई वाज ऑन अ वैकेशन ट्रिप, फैमिली ट्रिप में आउट ऑफ इंडिया था। वहां मेरे पास एक फोन आता है कि सब बड़ा अर्जेंट मैटर है। मैंने कहा यार कोई फांसी थोड़ी हो रही है जीएसटी में जो इतना अर्जेंट हो गया। नहीं, बहुत अर्जेंट है उनको, क्योंकि उस टाइम आपको कोई भी कमी हो हम उसको सबको सुधारवा सकते हैं। हैविंग डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये जो पूरा जिन्होंने अगर ध्यान से सुना होगा ये वाली चीज जो मैं बात कर रहा था, अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरे से जो गलती हुई थी वो तो 17, 18, 18, 19 में हुई। अब सर थोड़ा सा लड्डा जी आप प्रोविजो को भी पढ़ दीजिए। मैंने प्रोविजो के लिए एक मिनट रोक दिया था आपको उस टाइम।
Yes, sir. Provided that no much rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year to which such detail pertains, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier. ठीक है सर। तो अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि, और आना चाहिए, वाजिब बात है कि भाई अब 17, 18 और 18, 19 का आप कैसे करेंगे, निकल गया ना टाइम लिमिट सब कुछ। अब मैं बताता हूं कैसे। अब आप देखिए सेक्शन आपने जहां से पढ़ा था उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड मैं वापस पढ़ देता हूं सबकी बेनिफिट के लिए, जहां से ये स्टार्ट हुआ था। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38। क्या मतलब हुआ साहब इसका? इसका मतलब हुआ कि पहले हम इफेक्ट देंगे सेक्शन 37 और 38 के प्रोविजन को, उसके बाद यहां आएंगे। करेक्ट है ना? गलत तो नहीं कह रहा? करेक्ट। पहले हम इफेक्ट देंगे प्रोविजंस को, कौन से? सेक्शन 37 और 38 के, देन वी विल कम ऑन 39(9), उससे पहले नहीं। राइट। अब आप पीरियड लीजिए जो आपको मर्जी करे जीएसटी में। लेट अस से 2017 की बात करते हैं। आज जुलाई 2017 में कोई क्रेडिट गलत ले लिया आप, ठीक है, और उसके लिए अब आप उस क्रेडिट गलत फिल हो गया, जैसा ये 39 में लिखा हुआ है, इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन 37, 38 में भी है। भाई जो रेक्टिफिकेशन खाली जीएसटीआर 3 की बात थोड़ी है, 1 और 2 में भी हो सकता है। अब आप 38 को रेफर कीजिए। 38 क्या कहता है कि भाई आपका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन तो तब होगा ना जब मैं फाइल करूंगा रिटर्न। जब तक मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं की तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। और फाइल मैं कब करूंगा? जब रिटर्न आएगी। हाँ। और सरकार का नोटिफिकेशन क्या कहता है, आज की डेट में भी ये कहता है कि जुलाई 2017 की जीएसटीआर 2 आपको फाइल करनी है। डेट हम अभी बताएंगे। तो जब आप डेट बताओगे उसके बाद मैं फाइल करूंगा। अब अगर कोई गलती हो गई है तो वो 3B में गलती हो गई, दैट इज नॉट अ मेन रिटर्न टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। करेक्ट रिटर्न इज जीएसटीआर 2, जिसका की रेक्टिफिकेशन है, दैट इज ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो आप बीच में लेके आ गए। नंबर 1, अगर आईटीसी से रिलेटेड कोई रेक्टिफिकेशन है तो यू विल टेक दिस रूट। अगर टैक्स आउटपुट से रिलेटेड कोई है तब इसको लिंक कर दो 38 और 39 कि 39(9) पिक्चर में तब आएगा जब पहले 38 इफेक्ट में आ जाएगा। तो जब तक 38 इफेक्ट में नहीं आया 39 इफेक्ट में नहीं आ सकता। तो दैट मींस इवन जुलाई 2017 की आउटपुट को भी मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं। दिस इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन और माय आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट सिर्फ हवा में नहीं है, दिस आर्गुमेंट हैज बीन नॉट इन दिस मैनर, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से अप्रिशिएट भी हुआ है बाय ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। लेट मी टेल यू हाउ। एक केस आपको बताता हूं, यू मे नोट दैट केस नेम इज सन डाइकेम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, पता नहीं सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स जो भी थे, अक्टूबर 2020 का जजमेंट। इस केस में हुआ क्या कि 2017 का कोई क्रेडिट था, 2017 का कुछ जो सप्लायर ने कुछ फाइलिंग वगैरह की, उस फाइलिंग में जो इंट्रा स्टेट सप्लाई थी उसको गलती से इंटर स्टेट की तरीके से रिपोर्ट कर दिया। ठीक है सर, ऐसे बहुत जगह गलतियां हुई, सब जगह गलतियां हुई। इंटर स्टेट सप्लाई को कैसे रिपोर्ट हो गया, वो इंटर स्टेट सप्लाई रिपोर्ट हो गई, और वाइस वर्सा होगा, मुझे बहुत अच्छे से, अब पुरानी चीज हो गई, अब तो पिछले साल का जजमेंट है। और ये वाली चीज, अब मैंने तो फाइल कर दिया, बात खत्म, मुझे क्या पता। अब मेरे ग्राहक ने, मेरा जो कस्टमर था, उसने मुझे आके 2019 लास्ट में जाके बताया, 2019 में बताया मुझे, अगस्त सितंबर 2019 में मुझे बताया कि भाई ये आपने, भाई हमारी क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जब क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तब उसको पकड़ना है। अब क्या करें, उस सामने वालों ने पैसा रोक लिया। तो फिर ये कोर्ट शरणम गच्छामि, क्योंकि साहब अब क्या करें। अब उस जजमेंट की ब्यूटी देखिए उसमें क्या है। वहां पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट हैज स्पेसिफिकली नोटेड डाउन कि देयर इज नो टू डाउट, देयर आर नो डाउट अबाउट इट कि ये गलती पेटिशनर की है।
ये बिजनेसमैन की गलती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि रेक्टिफिकेशन का जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है वो निकल गया है। जो रेक्टिफिकेशन हो सकता था वो आपके जनवरी 2019 तक, सॉरी मार्च 2019 तक हो सकता था, उसके बाद उस टाइम निकल गया। आप उसके बाद आ रहे हो हमारे पास, डिपार्टमेंट के पास उसके बाद जा रहे हो, आप हमारे पास उसके बाद आ रहे हो, तो आपका टाइम आप निकाल के आ चुके हो। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है, वहां पर वो उन्होंने कोर्ट ने अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया। वहां पर कैसे लिखा गया कि ये क्या था कि ओरिजिनली जो आपकी रिटर्न फाइलिंग स्कीम है जो कानून में लिखी हुई है वो क्या है, GSTR 1, 2A, 2, 1A, then 3। और अगर ये स्कीम आप सही तरीके से लगाते, यानी जो आज की डेट में कानून में लिखा हुआ है वो इंप्लीमेंट करते, तो इस पेटिशनर के बायर को उसी टाइम पता चल जाता। भाई जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर 2017 में मिस्टेक हुई, तो जनवरी 2017 में उसके बायर उसको बता देता, अगर आपका ये 2A सिस्टम चल रहा होता तो। लेकिन आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा था। जब आपका सिस्टम चल ही नहीं रहा था तो इसमें असेसी की क्या गलती है, कितना भी टाइम लिमिट निकल गया और रेक्टिफिकेशन अलाउ। इसके अलावा भी सर पहले सिस्टम में एरर था कि वो इंट्रा को इंटर में ले लेता था, इंटर को इंट्रा में ले लेता, अब नहीं ले पा रहा है। If my state code and my customer code, state code is different, then only the IGST should be allowed. तो अब इसका मतलब आप पकड़ो क्या हुआ, मतलब आई एम कमिंग डाउन टू दैट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था। मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि GST इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल प्रोफेशनल, और हम इसको सिरदर्द मान के बैठे। मतलब आप देखो, इट्स बाउंड टू हैपन, जब कोई नई चीज आती है तो गलती होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इट्स बाउंड टू हैपन। अब वो गलती हो गई और गलती में कंट्रीब्यूशन हमसे ज्यादा सरकार का, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया जिस तरीके से, आज तक भी तो GST हटवाया नहीं है उनका। तो व्हाई नॉट दैट मिस्टेक शुड बी अलाउड टू रेक्टिफाई, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ऐसे ही मैं आपको, आपका गुजरात का ही एक जजमेंट है, गुजरात का ही आपको शेयर करता हूं, नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन CAs के लिए अच्छी चीज है, जो प्रैक्टिशनर्स है हम सब लोग उनके लिए अच्छा है, क्योंकि गलतियां हमारे ऑफिस में भी तो हुई हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आपके यहाँ का एक जजमेंट है जिसमें हुआ क्या, एक मिलते जुलते नाम की कंपनियां थी, दीपक प्रिंट और दीपक प्रोसेसर। अब इसमें किसके यहाँ गलती हुई, बट मोटे तौर पे इट अपीयर्स, क्योंकि कोर्ट जजमेंट में तो इतना बहुत क्लैरिटी से नहीं है, बट इट अपीयर्स कि जब रिटर्न फाइल हो रही होगी तो वो डेटा जो अपलोड होना था वो अपलोड हो गया प्रोसेसर का बजाय दीपक प्रिंट के। अब जब अपलोड हो गया डेटा, गलती हो गई, तो वो अपलोड के बाद एक ऑप्शन सबमिट ओमिट का भी आता है शायद, उसमें सबमिट या कोई, सॉरी मैं क्योंकि पोर्टल नहीं खोलता, मैं रिटर्न नहीं फाइल करता, तो मुझे ज्यादा अवेयरनेस नहीं, मैं लीगल एस्पेक्ट देखता हूं, तो उसमें ऐसा कुछ है। उसके बाद हाँ, उसका तो वो चेंज नहीं हो पाए। अब उसके बाद वो फाइल नहीं हो पा रही, तो उसमें पोर्टल ये और कहता है कि इसके अगली रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाओगे, तो वो रिटर्न और फाइल अप होती हुई चली गई। तो पेटिशनर came before the Honorable High Court asking for relief in the manner कि भाई एक तो मेरी ये रिटर्न ठीक करवा दो, दूसरा इन्होंने जो लेट फीस और लगा दी उससे भी बचवा दो। And fortunately, Honorable Gujarat High Court was kind enough to agree on both the prayers कि भाई आपको मैनुअल भी प्रोसेस हो जाएगी और दूसरा जितनी भी बाद की रिटर्न जो इसकी वजह से अटकी है उसके ऊपर लेट फीस नहीं लगेगी। अब वो हो सकता है आज की डेट में इतना रिलेवेंट नहीं हो, क्योंकि लेट फीस की चीजें तो अभी वेवर हो रखी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट अदरवाइज देखिए कितना बढ़िया रिलीफ मिला। इसी तरीके का क्या, रेदर इससे भी एक बहुत साउंड जजमेंट एक मैं आपको बताता हूं, जिसमें ये रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि भाई गलती हो गई ना, अब गलती की कोई सजा फांसी थोड़ी हो सकती है, गलती का रेक्टिफिकेशन करवा दो। अब आज की डेट में हम सब लोग कई बार क्या सोचते हैं, जो कॉमनली मेरे पास केसेस आते हैं जो प्रैक्टिशनर्स वगैरह की तरफ से, वो कहते हैं अरे यार 16/4 का टाइम निकल गया, कैसे क्रेडिट दिया। मैं आपको एक केस बताता हूं जिसमें क्रेडिट नहीं रिफंड लिया एक आदमी, एंड आई मस्ट से बहुत अच्छे जो भी काउंसिल थे उसमें, तरुण जी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट के जो काउंसिल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया कि दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाउ यू प्रेजेंट योर केस। व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ एयरटेल में मास लेवल का कैपिटलाइजेशन हुआ था, बहुत कैपिटलाइजेशन हुआ था इन द मंथ ऑफ वही जून जुलाई अगस्त, ये जो पीरियड था अपना इसका
2017 का, और उसमें जो कैपिटलाइजेशन था उसके ऊपर जो क्रेडिट आना था, व्हाट हैपेंड कि वो क्रेडिट लेने से छूट गया। अब वो क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, भगवान मालिक, वो क्रेडिट लेने से छूट गया। और जब ये बात सामने आई, जो कि जब तक कि सारे टाइम निकल चुके थे, 2018 में, मतलब 2017 का ये मैटर था, जून जुलाई अगस्त 17 का, और तब तक वो सितंबर अक्टूबर वो सब चीजें निकल गई थी। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर वगैरह में वो चीज सामने आई कि भाई ये इस तरीके से करके क्रेडिट हमारा लेने से रह गया। और ऑब्वियसली जब क्रेडिट लेने से रह गया तो क्या हुआ होगा, टैक्स जेब से पे कर दिया, टैक्स कैश में पे कर दिया। और मुझे अगर गलत याद नहीं है तो जो अमाउंट था वो 900 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, 900 समथिंग करोड़ का अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। अब उसके बाद जो उसमें केस प्रेजेंट किया गया, वो कैसे प्रेजेंट किया गया कि वहां पर पॉइंट जो आया वो यही था कि सबसे पहले तो जो सरकार जो ओरिजिनल स्कीम लेके आई थी, वो स्कीम यही थी टैक्सेशन की, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब ये 3B वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, और कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ विद द स्कीम व्हिच वाज देयर इन द लॉ। अगर मान के चलो ये लॉ की ये स्कीम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होती तो उसी टाइम कंपनी को पता चल जाता कि ये मिस्टेक है या ये गलती है, जो भी चीज है। बट समहाउ, और पिटिशनर क्लेम, एयरटेल क्लेम कि भाई ऐसा है कि ये तो क्रेडिट लेने की तो खाली बात नहीं थी, ये बात ये थी कि हमको जो उस टाइम कैश आउटले हो गया, यानी उस टाइम जो टैक्स पेमेंट करने में जीएसटी चला गया, उसका हमें रिफंड मिला। दिस वाज द प्ली। और उसमें उन्होंने यही नहीं कहा कि ये गलती हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें और आइडेंटिफाई की, क्योंकि ये जब नया लॉ लग रहा है, नया कुछ हो रहा है, तो उसमें कंपनी से कई तरीके की गलतियां हुई हैं, ये भी वो भी, और इस वजह से क्योंकि सिस्टम नहीं हो पाए, कुछ टैक्स देने से भी छूट गया, कुछ ये भी हो गया, वो हो गया, वो कहानी ऐसी बनाई जाती है। तो नट शेल में ऑर्डर ये हुआ कि उसको ये क्रेडिट अलाउ हो और रिफंड दो इसका। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेडिट भी मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां रिफंड भी ऑर्डर हो गया। So this is what important aspect. This is what the judgment of Honorable Delhi High Court, ये आया था मई 2020 में। तो ये मैंने कुछ जजमेंट जो रेक्टिफिकेशन वगैरह के ऊपर आपसे शेयर किए, वो इसलिए किए क्योंकि बहुत सारी मुझे लगता है हमारे सामने चीजें आती रहती हैं जिसको कि गलतियां हो जाती हैं और हमसे बैठ नहीं पाता है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड द टाइम विच वॉज गिवन टू मी, बट काफी सारी चीजें जो मैं सोच रहा था, मैंने अपने में नोट किया था, जिनके ऊपर बोलूंगा, उसमें से एक रूल 86A छूट गया है मेरा, सर्कुलर वाली बात छूट गई है, 180 डेज, ये वाला बात कर लेते हैं, ये 5 मिनट में हो जाएगा। टू बी फॉलोड। हाँ, एक पॉइंट सर, आपकी परमिशन हो तो 5 मिनट और ले लेता हूँ सर। प्लीज। एक बड़ा कॉमन, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कॉमनली सबके लिए यूज हो, वो वाली पॉइंट हम डिस्कस कर लें। एक बड़ा कॉमन इश्यू सामने आता है कि 180 डेज आपके इनवॉइस को हो चुके हैं और आपको, या आपने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, क्रेडिट रिवर्सल करो। ये बड़ा एक कॉमन सी चीज आज से बहुत टाइम पहले से आ रही है। एक चीज तो सब लोग बहुत अच्छे से देख ही चुके हैं कि जो सर्विस टैक्स लॉ था और जीएसटी है, उसकी ड्राफ्टिंग में डिफरेंस है। ड्राफ्टिंग में जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16, वो यूज किया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज में, सॉरी, तो ये आई गेस 16(2) का प्रोविजो कहाँ है भाई, ये रहा, provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of the goods or services। तो ये फेल जो वर्ड है, ये पहले नहीं होता था, ये वर्ड अभी आया है। पहले जो पुराने लॉ में था, कुड नॉट पे, इस तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पर है फेल। तो फेल वर्ड का मतलब होता है a person was supposed to do something, a person was obliged to do something and he has not done that act. This is what the meaning of failure या fail। मीनिंग देयर बाय कि अगर मान के चलो मेरे और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही है कि मैं आपको 1 साल बाद पेमेंट दूंगा, कई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें होता है ये वाली चीज, प्लांट एंड मशीनरी के हैं जिसमें स्कैटर्ड पेमेंट है, तो उसमें ये प्रोविजो इस तरीके से ऑपरेट नहीं हो सकता। यानी कि वो फेलियर तब, ये खाली 180 दिन से नहीं काउंट होगा, 180 दिन तो इनवॉइस से काउंट होंगे, दैट इज ट्रू, लेकिन जब तक वो मैं शेड्यूल के ऊपर पेमेंट कर रहा हूँ, ये प्रोविजो ट्रिगर नहीं होगा। नंबर 1, ये मेरे ख्याल से सब लोगों के अच्छे से नॉलेज में। एक और एस्पेक्ट है, देखिए, जो मैंने आपको पहले भी शायद अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी लॉ का जो, जब मैंने आपको इनिशियली, मैं हर जगह यूज करता हूं कि
हमेशा हम लोगों को आर्टिकल 265 को रेफर करना चाहिए। आर्टिकल 265 अपना कानून अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है ना सर? अदरवाइज देन अथॉरिटी, यानी कि खाली लेवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलेक्शन भी कैसे कर सकता है कोई? जैसे लॉ कहेगा, उसके बिना करेक्शन नहीं कर सकते। भले ही मेरे ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन कानून ने बता रखा है इससे आप रिकवरी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, या रिकवरी आपको इस तरीके से करनी है तो इसी तरीके से करनी है, आप अपनी मर्जी के तरीके से रिकवरी नहीं कर सकते। तो अब अगर मान के चलो, लेट अस अज्यूम कि 180 दिन हो गए, पेमेंट ड्यू भी हो गया, और ड्यू होने के बाद इनवॉइस डेट से 180 दिन में निकल गया, अब क्या करें? इसके लिए इसको कैसे रिवर्स करना है? वैसे टेक्निकली हम रिवर्स बोल देते हैं सब लोग लैंग्वेज में, कॉमन यूज में, बट एक्चुअली इट इज नॉट रिवर्सल। सेकंड प्रोविजन टू 16 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उसको आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करेंगे। अब वो कैसे ऐड करेंगे? आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कैसे करेंगे? उसका कोई तरीका तो होना चाहिए। तो उसका मेथड प्रिस्क्राइब है। अब अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें वर्ड लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब। तो इसमें जो प्रिस्क्राइब वर्ड है कि भाई प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होता है। अब रूल्स में क्या लिखा गया? रूल 37 आप रेफर कर सकते हैं। रूल 37 में ये लिखा गया कि आप ये वाला जो अमाउंट है, यू विल डिक्लेयर दिस अमाउंट इनटू जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 वापस आ, जो आज मेरे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है, जीएसटीआर 2 कहां है? जीएसटीआर 2 नहीं है ना। तो जिस दिन मेरे उस महीने की, यानी मान के चलो 180 दिन पूरे हो रहे हैं मेरे, लेट अस अज्यूम अगस्त 2019 में, तो जब मैं अगस्त 2019 का जीएसटीआर 2 फाइल करूंगा, कानून ये कहता है उस महीने में आप जीएसटीआर 2 में दिखाओगे, बात खत्म। फिर एड बैक कैसे होगा? सिस्टम विल ऐड इट। प्लीज रीड रूल 37 1 एंड 2। वो क्या है? 1 में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि आप अपने जीएसटीआर 2 में दिखा दोगे, बात खत्म। अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये 2019 में ही ये जितनी जगह पर 2 लिखा हुआ था ना, वो 2 3 लिखे हुए थे, 1 लिखे हुए थे, यहाँ सब जगह इन्होंने उठा के मॉडिफाई करके 2 और 3 भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें होने से रह गया। तो आज भी वो 2 की बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि अगस्त 2019 में आपका ये 180 दिन पूरे हो गए जी, आपने क्यों नहीं 3 में डिक्लेयर किया? 3 में मुझे डिक्लेयर ही नहीं करना, मुझे डिक्लेयर किस में करना है? जीएसटीआर 2 में। जिस दिन जीएसटीआर 2 उसका मैं भरूंगा, मैं इसको जीएसटीआर 2 में डिक्लेयर कर दूंगा। जब भी आप डेट बताओगे, उसकी डेट ही नहीं आई अभी तक। अगर कोई नोट करना चाहे तो एक दो मैं जजमेंट बता देता हूं जो बहुत काम के हैं इस लाइन के ऊपर, कि जो भी पावर होती है, पावर हैज टू बी एक्सरसाइज इन दैट मैनर ओनली। कोई आप अपने अलग तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा ये है, हुकुमचंद श्यामलाल का एक जजमेंट था, ये आई एम नॉट रॉन्ग, टेलीग्राफ एक्ट का जजमेंट था ये, तो उसमें भी ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। और उसके अलावा एक बड़ा फेमस जजमेंट है सेठ ब्रदर, ये अपने टैक्स लॉ का ही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज बिल्कुल डिस्कस की। इनकम टैक्स का जजमेंट है कि जो आपकी प्रोसीजर है, अगर किसी चीज का प्रोसीजर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, देन यू विल हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। आप अपनी मर्जी से कोई प्रोसीजर नहीं लेके आ सकते। तो यहां पर क्या है कि एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, देयर इज अ सब्सटेंटिव प्रोविजन कि 180 दिन के बाद आउटस्टैंडिंग वो ऐड करना है, बिल्कुल वेरी करेक्टली ओबे दैट। तो उसको कैसे करना है? प्रिस्क्राइब्ड मेथड। प्रोविजन क्या कहता है? जीएसटीआर 2 में दिखाना। टैक्स पेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि उसको जीएसटीआर 2 में दिखाना। ठीक है, दिखा देंगे जब जीएसटीआर 2 आएगा चैप्टर एंड। उसके अलावा प्रोसीजर लॉ में यही प्रिस्क्राइब्ड है। अब आप जीएसटीआर 2 नहीं लेके आ पा रहे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। ये बचने के रास्ते हैं, ये प्लानिंग का रास्ता नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उसके लिए नहीं है कि आप क्या कहते हैं क्लाइंट को एडवाइस करो। एडवाइस तो मेरे पास भी कोई आएगा, मैं ये कहूंगा भाई 180 दिन होगा, रिवर्स कर क्यों झंझट पालता है बिना फालतू में। लेकिन अब कोई फंसा हुआ भी आ जाता है ना, तो क्लाइंट आ गया फंसा हुआ, तो उसको कैसे करना? तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ आपको कि रूल अभी तक जो कह रहा है और जो फॉर्म्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है आज तक। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दे डजंट कंप्लाई विद ईच अदर, और मे बी वी कैन टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कि अगर 180 डेज के अंदर रिवर्सल नहीं किया तो कोई उसका किसी वायलेशन नहीं किया लॉ का आज के लिए। With this, I conclude my session. Already I have exceeded by 10 minutes. Thank you for the Gandhi Nagar CP chapter for giving me this opportunity to interact with you all. I hope मैंने ट्राई किया कि जो ज्यादा काम की चीजें हो वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक स्मॉल क्वेरी है सर जो सबके लिए बहुत यूजफुल होगी।
पूरे जीएसटीआई प्रोविजन के अंदर कोई भी अंडर प्रोटेस्ट का रिवर्सल का प्रोविजन नहीं है। अब चाहे वो सफारी रिट्रीट की बेस पे बात करें या किसी और केस में, कि मेरे को लगता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कोई मेरे फेवर में केस आ जाए, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट से बचने के लिए मैं उसको रिवर्स कर दूं। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा है और कहीं से अलग अलग व्यूज हैं कि इफ आई रिवर्स आई कैन नॉट से इट इज अंडर ऑब्जेक्शन, और उस केस के अंदर यदि मैं रिवर्स कर लूं, जीएसटी DRC 03 फाइल भी कर दूं, इट इज डीम्ड दैट इट इज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू टेक द recredit of that. So your views on this? फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 एस्पेक्ट हैं इसमें, इस चीज को देखने के और समझने के। एक, आपने मुझे ये कहा कि अंडर प्रोटेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, वेरी ट्रू। लेकिन जब भी हम ये वाली बात कहते हैं तो बेसिकली वी आर इंस्पायर्ड बाय आवर अर्लियर लॉ। जो हमारा पुराना कानून था उसमें प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन था। अभी मैं बात करता हूं क्या था। वहां पर सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि आप अंडर प्रोटेस्ट में जमा करा सकते हैं। प्लीज रेफर एक्सरसाइज। द प्रोविजन वाज कि प्रोसीजर क्या है अंडर प्रोटेस्ट का, कि अगर आप अंडर प्रोटेस्ट में जमा करा तो ये फॉलो करना, तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ। ये नहीं था कि आप सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं था कि आप अंडर प्रोटेस्ट जमा करा लोगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या करा सकते हो। लिमिटेशन ऑफ पीरियड से वो एक बार आउट हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो मेरी राय में जब उन्होंने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं किया तो हम अपनी तरीके से करा सकते हैं अंडर प्रोटेस्ट। यानी जब सरकार ने प्रोसीजर नहीं दिया, और अंडर प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोई कानून का प्रावधान होने की जरूरत नहीं है। एक मैं जजमेंट और बताता हूँ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, मेरे को बहुत अच्छे से याद में नहीं आ रहा है पूरा नाम, कुंज बिहारी लाल समथिंग था। ये मफतलाल वाला जो जजमेंट है ना रिफंड को लेके, उसमें डिस्कस हुआ है, और उससे पहले का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। कुंज बिहारी समथिंग है, मैं पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या चीज डिस्कस किया है कि आप जब ये टैक्स जमा कराते हो ना, और ये टैक्स उसको कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से लिंक किया है वहां पर कि अगर कोई गलत टैक्स जमा हो गया किसी भी तरीके से, तो ये गवर्नमेंट आर्टिकल 265 की लाइट में ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पैसा उसको वापस करो सामने। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो जीएसटी लॉ में अंडर प्रोटेस्ट पे करने का तरीका, फिर इंटरेस्ट के ऊपर आता हूं मैं आपकी बात से। पहली बात, जब आप इंटरेस्ट की करते हो तो सॉरी अंडर प्रोटेस्ट जमा कराने की, तो उसका बेस्ट वे आउट है जब आप DRC 03 फाइल कर रहे हो ना, उस पर रिमार्क्स का कॉलम है, उसी में लिख दो अंडर प्रोटेस्ट। आपके जब प्रिंट आउट आएगा तो उसमें बाकायदा अंडर प्रोटेस्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कोर्ट में तो यही चलेगा, कागज ही चलेगा ना। तो जब वॉलंटरी लिखा हुआ है, वॉलंटरी है, नो डाउट, मैं लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कर रहा हूँ ना, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट में करा रहा हूँ, मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ इस लायबिलिटी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज एडवाइज, और जो मैं करता हूं मेरे क्लाइंट्स के केस में, आई कैन शेयर दैट, जमा कराने से पहले मैं एक इस चीज के लिए एक लेटर डलवाता हूं रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर कि दो वी डजंट अज्यूम लायबिलिटी, या हम ये मानते हैं कि ये हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, या ये ITC रिवर्सल हमें नहीं बनता, और उसका ये रीजन है, बट इवन दो टू बाय पीस ऑफ माइंड वी आर डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट अंडर प्रोटेस्ट एंड वी रिजर्व ऑल आवर राइट्स टू रिक्लेम दिस और टेक अ रिफंड ऑफ दिस अमाउंट। ये हम बाकायदा एक लेटर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके, ये मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, ये डलवाते हैं, और साथ साथ में अंडर प्रोटेस्ट लिखने के लिए बोलते हैं उसको DRC 03 में। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नंबर 2, ये तो आपने बात की कैसे करना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर मैंने अपना कमेंट किया। नंबर 2 आपका पॉइंट था कि क्या हम इसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो रिक्लेम करने की बात आएगी क्रेडिट में, जब आप क्रेडिट का रिवर्सल करें। टैक्स में तो बात ही नहीं है, टैक्स में तो अगर गलत जमा हो गया तो आई विल टेक द रिफंड, ठीक है। तो उसमें मफतलाल वगैरह सब हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, बहुत शानदार जजमेंट है। तो आप प्लीज रेफर रूल 37, उसका मार्जिन हेडिंग मत पढ़िएगा, बस मैं ये कह रहा हूं। जो रूल 37 आप निकालेंगे और उसमें जो मार्जिनल हेडिंग दिया हुआ है ना, कि मार्जिनल हेडिंग अगर कंटेक्स्ट से अलग है तो मार्जिनल हेडिंग की लीगल इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं कर सकते, ये सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जब मार्जिनल हेडिंग आप पढ़ोगे तो उसको देख के सुन के ऐसा लगता है कि
this is talking only and only about second proviso to 16 subsection 2. That means वो 180 दिन वाली बात. लेकिन जब वो रीअवेल की बात करता है तो वो सारे क्रेडिट के लिए करता है. यानी कि अगर मान के चलो मैंने एक बार रिवर्सल कर दिया और मैं दोबारा ले रहा हूं तो 16.4 की टाइम लिमिट लगेगी नहीं, वो इसकी बात करता है. आप स्पेसिफिकली आराम से उसको पढ़ के देखिएगा. एंड मार्जिनल हेडिंग को उसके जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसको छोड़ के पढ़िएगा तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर रूल इज टॉकिंग अबाउट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रेडिट. This is the case. So I hope this is with this your answer will get responded. Yes. Your question will get responded. Savada sir. ठीक है sir. Yes, sir. Jatin sir, really it was very nice and fabulous to listen, sir. Everybody is a crowd also reached to around 35-40, and some people also, sir, commented that please arrange Jatin sir's seminar once again also. So really, sir, thank you very much for enlightening us on a very crucial topics like ITC, and in that also certain topics which, sir, you have touched upon are really क्या बोलते हैं ना सर कि जो दिक्कत वाले हैं जहाँ के everybody is going there to stuck up. और डिपार्टमेंट ने जो the notices are also issued like a flood, and how to tackle that issues, how to tackle up with the problem of rectification, the question of reversal under 180 days provision. So sir, you touched upon all the important topics which are more or less just like a headache for the practitioner and as well as these traders also. So thank you very much for nice lecture, sir. And once again, we request here also to spare your time in future also, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks to all of you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Bye. Good night. Good night. Thank you. हाँ दुलीचंद.